Okay. So now the next chapter that we are starting with is going to be chapter 2 of directors. So directors, as I told you, has 3 chapters, out of which first chapter was qualification appointment, which was 149 to 172 that we are done with. Next chapter that we are going to do is 173 से लेके 195 तक. And lastly, then the last chapter 196 to 205. Okay. Now, in this 195, the series of this particular chapter, 194 and 195 have been omitted. Okay, so they do not form part of this particular chapter now. The sections itself are omitted. Okay, so now moving ahead, starting with 173 to 195, the first particular chapter, the name of the chapter is meetings of and powers of board. So you'll have board meetings, powers, restrictions on powers, contributions, related party transaction, a lot that you already have heard about, like disclosure of interest here, and quite many new things. Okay, so let's start. 173 meetings of board. सबसे पहले understand one thing. Board meetings. Is it compulsory for directors to conduct meetings? Is it compulsory for directors to conduct meetings? Of course it is, na? Because if you remember, when I was teaching you section 167, wherein I told you if the only place wherein a director goes and meets the company is the board meeting. Okay, so if you understand, board meeting ही नहीं होएगा तो director company से मिलेगा कैसे? Because company hires the director. It's not shareholders का directors. No. It is company. Company separate legal entity है, artificial person है, तो उसी का director होता है ना. So if you understand one simple thing, company and directors meet only at a board meeting. Okay, whereas these big companies now, they don't want their directors to meet. Their directors do meet, but they don't meet on paper. क्योंकि क्या है ना, अगर हम ऑन पेपर मिलेंगे ना तो कल को अगर कोई भी गड़बड़ हुई होगी तो उस गड़बड़ के लिए आरओसी को चाहिए होगा ओआईडी जब कोई नहीं मिलता ना, दे गो एंड फाइंड आउट मिनट्स ऑफ द कंपनी, मिनट्स ऑफ द मीटिंग, मिनट्स में जो प्रेजेंट था उस पर्टिकुलर मीटिंग के, दे कंसिडर देम एज ओआईडी. सो व्हाट दे डू इज, दीज पीपल डोंट मीट ओनली, ना मिलेंगे ना मिनट्स बनेंगे, ना पकड़े जाएंगे किसी चीज़ में. नाउ इट्स लाइक मैम क्यों नहीं, मिलो ना तो सिटिंग फीस मिलेगा. यार सिटिंग फीस ना मैक्सिमम 1 लाख मिलता है, मैक्सिमम, नॉट मिनिमम. मैक्सिमम 1 लाख पर बोर्ड मीटिंग. और उसके हमने रिस्क इतना बड़ा, बड़े कंपनीज के लिए तो बड़े रिस्क है ना. ठीक है, सो इफ यू अंडरस्टैंड दैट इज द रीजन दे डोंट मीट. तो हमने उनको बोला नहीं यू गाइस हैव टू मीट मोर. ठीक है, तो सबसे पहली चीज़ अंडरस्टैंड फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग. हमने उनको बोला देखो यार, बोर्ड मीटिंग ना पहले 2 टाइप की है. 2 टाइप की मतलब वीव केप्ट वन एज फर्स्ट बोर्ड मीटिंग, अनदर इज योर सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग. सी अंडरस्टैंड, फर्स्ट टाइम इज ओनली वंस. फर्स्ट टाइम तो सिर्फ एक ही बार होता ना, उसके बाद तो चाहे तुम सेकेंड हो या तुम 22nd हो या तुम 222nd हो तो तुम सब्सिक्वेंट ही. ओके, सो नाउ ओनली द फर्स्ट बोर्ड मीटिंग. एवरीथिंग इन लॉ फर्स्ट टाइम इज स्पेशल. ठीक है, फर्स्ट डायरेक्टर अलग होता है, फर्स्ट ऑडिटर अलग होता है, फर्स्ट जीएम अलग होती है. ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट बीएम की भी रूल्स अलग हैं. एंड फर्स्ट बीएम इज टू बी डन विद इन 30 days of incorporation. Makes sense. On the other hand, when you talk about subsequent board meetings, there are 2 conditions, guys. There are 2 conditions and both of them are cumulative. Okay, pehla is you need minimum 4 board meetings every year. Okay, there are minimum 4 board meetings every year. And secondly, maximum gap between any 2 board meetings cannot be more than 120 days. Is this okay? Minimum 4 each year and maximum gap 120 days. So let's go ahead. Minimum 4 board meeting each year and maximum gap cannot be more than 120 days. Make sense? But if you talk about IFSC public company and IFSC private company, they have to conduct first meeting within 60 days and one in each half of the calendar year after that. Is this okay? ठीक है. Now, this is for normal companies. So, तो अब normal company कौन सी होती है? अब normal नहीं होती है, but yeah, there are other companies also. उनका वैसा है कि they are meeting too much. They are meeting too much. ठीक है? Which companies are they? So if you move ahead, this is for normal companies. There are some other companies also that we are talking about. There are. Now just understand this particular thing. There are certain companies called small OPC, small companies, OPCs, dormant and private company. Just if you think about their name, इनके नाम से आपको पता चलेगा इनके पास कितना काम होगा आपके हिसाब से. स्मॉल कंपनी है, टर्नओवर इसका 2 करोड़ के ऊपर नहीं जाता. ठीक है, OPC है, 1% कंपनी विच इज डोरमेंट कंपनी है, पब्लिक प्राइवेट कंपनी स्टार्टअप है.
Do you really think they have so much, as much work as a listed public company? No. बट हो क्या रहा है पता है प्रैक्टिकली ये लोग कुछ ज़्यादा ही मिल रहे हैं गाइस. रिमेंबर थिंग्स लॉजिकली यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड. ये लोग कुछ ज़्यादा ही मिलता है. इतना तो वो लोग नहीं मिल रहे बड़ी कंपनी वाले जितना ये लोग छोटी कंपनी वाले मिल रहे हैं. तो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट कम्स टू माई माइंड इज तुम इतना क्यों मिल रहे हो भाई? तुम्हारे पास क्या काम है? आई टेल यू इनके पास कोई काम नहीं है. बट द प्रॉब्लम इज directors remunerations out as a percentage of profit. These companies have smaller turnover, so lesser profit. उसका परसेंटेज बहुत कम आता है. तो इट्स लाइक क्या करें सो दैट पैसे बढ़ जाएं. रेम्यूनरेशन के रूल्स तो तोड़ नहीं सकते, बट सिटिंग फीस इज इररिस्पेक्टिव ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस. तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग और मिलते हैं. दे मीट एक्स्ट्रा सच दैट कि सिटिंग फीस से यू गेट इनफ मनी. ठीक है. सो देन दे आर यूटिलाइजिंग दिस पावर ऑफ कॉलिंग अ बोर्ड मीटिंग फॉर देयर ओन पर्सनल बेनिफिट एट द कॉस्ट ऑफ कंपनी. तो हमने इनको बोला एक सेकंड रुक जा. बड़ी कंपनीज को हमने बोला और मिलो और मिलो. इनको हमने बोले थोड़ा कम मिलो थोड़ा कम मिलो. इफ यू अंडरस्टैंड देयर वी सेड मैक्सिमम गैप, हियर यू विल हैव मिनिमम गैप. बस ये लॉजिक याद रखना. ओके. सो अगेन आई एम मेकिंग द सेम चार्ट अगेन. बोर्ड मीटिंग्स आर ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट बोर्ड मीटिंग एंड ऑब्वियसली सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग. फर्स्ट का रूल इज सेम 30 days फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन. सब्सिक्वेंट के दो आने हैं ना. वहाँ पे था मिनिमम 4 each year, तो यहाँ पे आएगा मिनिमम 1 in each half of the calendar year. ओके मतलब साल की दो हो गई, बट यू कांट से साल की दो. ईच हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर. कैलेंडर मीन्स जैन टू जून, जुलाई टू दिसंबर. ठीक है. प्लस मिनिमम गैप या मैक्सिमम गैप? मिनिमम गैप 90 days. 90 days से कम का गैप नहीं होना चाहिए. तो इस लाइक मैम अगर कभी काम हुआ और मिलना पड़ा तो मिलो ना. डोंट मीट ऑन पेपर. क्या हो जाएगा मैक्स टू मैक्स? सिटिंग फीस नहीं मिलेगा. एज ए डायरेक्टर क्या ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कंपनी या सिटिंग फीस? कंपनी. ठीक है. सो फॉर नाउ कमिंग बैक, रही बात यहाँ पे एक स्पेशल पॉइंट है, दैट इज नो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग रिक्वायर्ड इफ़ यू फॉलो दी अदर रूल. मतलब हर 6 months में, हर कैलेंडर ईयर में एक कर रहे हो 90 days के गैप पे, तो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग अलग से नहीं गिनी जाएगी, उसी में हो जाएगी. इज दिस ओके ना? ये दो टाइप की कंपनी हुई, नॉर्मल कंपनी एंड योर OPC स्मॉल कंपनी डोरमेंट. अब एक और है NPO. ठीक है. फॉर NPO देव नॉट गिवन लाइक 2 conditions here. वो देव जस्ट सेड 1 sentence, 1 meeting in every 6 calendar months. Now my question to you is ये rule 1 meeting in every 6 calendar months and ये rule 1 in each half of the calendar year, सिर्फ ये वाला फर्स्ट वाला, ये दोनों सेम है. 1 in each half of the calendar year and 1 in every 6 calendar months सेम है. नहीं अलग है, सेम है. अच्छा ठीक है. कोई इसका आंसर तो पता चल जाएगा. इफ द आंसर ऑफ दिस, इफ यू सी डिसाइड इफ इट इज़ वैलिड कंप्लायंस फॉर 1 and 2, अगर आपका आंसर दोनों में सेम आ रहा है तो आपके हिसाब से ये दोनों रूल सेम है. पढ़ लो, सोच लो. क्या है आंसर? दोनों का आंसर सेम है. कैन बी. स्मॉल OPC डॉर्मेटरी फर्स्ट मीटिंग वाज हेल्ड ऑन 2 February, 2 and 2 November. इफ इट इज इसके केस में इट इज अ वैलिड कंप्लायंस, बट NPO के केस में इट इज नॉट, बिकॉज 1 in every 6 कैलेंडर मंथ्स होना चाहिए और यहाँ पे 9 महीने का गैप हो गया. ठीक है. सिर्फ इन दोनों सेम नहीं है. ठीक है. ये दोनों सेम हो ही नहीं सकते बिकॉज वो दोनों रूल्स ही सेम नहीं है. इज दिस ओके? नाउ इफ आई हैड टू ब्रेक अप दिस 1 sentence, ठीक है, जैसे हम अब तक पता है 2 कंडीशन बना रहे हैं. ठीक है. एक फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ये वो, वैसे ही हम इसका भी करते हैं. चलो इसको फर्स्ट बोर्ड मीटिंग एंड सब्सिक्वेंट बोर्ड मीटिंग. ठीक है. फर्स्ट बोर्ड मीटिंग का रूल सबके लिए सेम है, 30 days फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन. इस साइड सब्सिक्वेंट की 2 कंडीशंस आएंगी विच आई हैव टू मेक आउट ऑफ दिस 1 line. इफ आई हैड टू मेक दिस, ये मुझे बताओ, इफ दिस से 1 in every 6 कैलेंडर मंथ्स मतलब साल की कितनी? कॉमन सेंस 2. मैक्सिमम गैप कितना? 6 months. लेस देन 6 months. याद रखना हर 6 महीने में एक तो हो ही जानी चाहिए. सो लेस देन 6 months शुड बी द गैप. ओके. सो फॉर नाउ मूविंग अहेड, ये हुए 3 टाइप्स के फ्रीक्वेंसी विद इन द सेम सेक्शन. नाउ 173 सबसेक्शन 1 हो चुका है आपका और 5 हो चुका है. स्मॉल OPC डोरमेंट 5 था और नॉर्मल कंपनीज एंड NPO 1 था. ओके. नाउ कमिंग टू 2, पार्टिसिपेशन एट द बोर्ड मीटिंग. इफ यू नो पर्सन कैन पार्टिसिपेट एट द बोर्ड मीटिंग या तो फिजिकली या फिर थ्रू ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ऑल्सो. सो यू कैन कम ईदर इन पर्सन और थ्रू ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग. And these audio visual conferencing should be capable of recording your attendance. CG has the power
टू प्रिस्क्राइब कि कुछ चीज़ ऐसी होंगी जो ऑडियो विजुअल कॉन्फ्रेंसिंग से आप डिसाइड नहीं करोगे, ठीक है. एंड दैट दे हैव प्रिस्क्राइब्ड एज अप्रूवल ऑफ एनुअल अकाउंट्स, अप्रूवल ऑफ बोर्ड रिपोर्ट, अप्रूवल ऑफ प्रोस्पेक्टस, ऑडिट कमेटी मीटिंग्स एंड अप्रूवल ऑफ अमालगमेशन, मर्जर, डीमर्जर एक्सेट्रा. ये सब फिजिकल फॉर्म में ही करोगे, ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे नहीं. इज दिस ओके? ठीक है ना. सबसेक्शन 3 पे आते हैं. सबसेक्शन 3 इंपॉर्टेंट है. नोटिस ऑफ बोर्ड मीटिंग. मेरे को बताना, नोटिस इज गिवन टू हुम? एवरी डायरेक्टर. अगर ओरिजिनल भी है और ऑल्टरनेट भी है तो भी ऑल द डायरेक्टर्स, ऑब्वियसली ऑल द डायरेक्टर्स ना, बिकॉज अगर ऑल्टरनेट है भी तो इज अ सेपरेट डायरेक्टर इन हिज ओन कैपेसिटी. वो कोई कैजुअल वैकेंसी नहीं है. कैजुअल वैकेंसी में कैसे होता है, ओरिजिनल गया तब कोई और आया, बट ऑल्टरनेट में तो ऐसा ओरिजिनल है, इंडिया के बाहर गया है, डायरेक्टर तो है ना, ठीक है. सो दोनों को भेजना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको कहाँ भेजें? रजिस्टर्ड एड्रेस पे. ओके, एट इज रजिस्टर्ड एड्रेस. ठीक है, अगर उसका रजिस्टर्ड एड्रेस इंडिया के बाहर हुआ तो उसको इंडिया के बाहर भी भेजना पड़ सकता है. तो वेदर इट इज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, बोथ, इट डज नॉट मैटर, वो डायरेक्टर है, ठीक है. नेक्स्ट, कितने दिन का नोटिस होना चाहिए? नोटिस शुड बी सर्व्ड एटलीस्ट 7 days in advance. ये बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है. वील कम बैक टू दिस. ना, जस्ट टेल मी समथिंग, हाउ टू सेंड द नोटिस. वी कॉल इट पे नोटिस अलाउड है. पे नोटिस, पे पोस्ट ईमेल हैंड डिलीवरी, पोस्ट ईमेल हैंड डिलीवरी, ठीक है. सो हाउ टू सेंड? इट कैन बी सेंड बाय पोस्ट, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स और हैंड डिलीवरी. मेक सेंस? अब ना एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सुन लेना प्लीज. व्हाट आई एम सेइंग इज मिनिमम नोटिस कितने डेज का होना चाहिए? 7 days. सो व्हाट इफ आई सेंड अ शॉर्टर नोटिस? लीगली इट शुड बी void, right? And it is void. If you send a shorter notice, it is void. But if 2 conditions are satisfied, it will become valid. Okay. So shorter notice is void, but valid if 2 conditions are satisfied. Now the question is, which 2 conditions are we talking about? Those 2 conditions are, पहले तो it should be urgent, क्योंकि अगर urgent ही नहीं था तो इंतजार ही कर लेते. It should be urgent business plus minimum 1 ID should attend. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. Okay, 1 ID should attend. बट मैं क्या बोल रही हूँ, अगर ID भी नहीं था, अब तो void होना चाहिए. We said yeah, but again 2 satisfy हो जाए तो फिर से valid हो जाएगा. You should circulate copy of decisions taken to all the directors and at least 1 ID should ratify it. ध्यान से समझ लो. पहले तो 7 days नोटिस दो. शॉर्टर देना है तो अर्जेंट का, इफ यू सी देयर इज नो अल्टरनेट. अर्जेंट नहीं है तो गया. हाँ, अर्जेंट है बट आईडी नहीं आ पाया तो चलो बाद में साइन करा लेंगे. मेक सेंस? सो अर्जेंट बिजनेस होना चाहिए इफ 2 कंडीशंस में, एंड एटलीस्ट 1 ID मस्ट बी प्रेजेंट. बट इन एब्सेंस ऑफ ID, फॉलोइंग 2 conditions मोर. Decisions must be circulated to all the directors and at least must be ratified by 1 ID. बट प्लीज़ याद रखना गाइस, अर्जेंट का कोई ऑल्टरनेट नहीं है. अर्जेंट नहीं है और फिर एक ID बोले मैं रेटिफाई करता हूँ, सॉरी, अर्जेंट का कोई ऑल्टरनेट नहीं है. ओके ना, दिस इज पॉइंट नंबर जी. अब आगे बढ़ते हैं. नोटिस मस्ट स्पेसिफाई द ऑप्शन ऑफ डायरेक्टर टू अटेंड थ्रू वीडियो कॉन्फ्रेंस. मेक सेंस? ठीक है, ऑल गुड. आगे बढ़े. ठीक है ना. 173 चल रहा है. अब हम 173 सबसेक्शन 4 पे आ गए. 4 पे कैसे आ गए? 1 was frequency for normal companies, 2 was ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 3 was नोटिस. अभी क्या ना, 4 इज कॉन्ट्रवेंशन जो भी बाकी अपना, और 5 इज स्मॉल OPC डोमिट. ठीक है ना. कमिंग टू 4, फेलियर टू गिव नोटिस, फ्लैट 25,000 की पेनल्टी है OID पे. ओके, एंड इफ यू टॉक अबाउट नॉन एप्लीकेबिलिटी, मेरे को एक बात बताना, तुमने अभी सबसेक्शन 5 में क्या पढ़ा? स्मॉल OPC डोरमेंट कितनी बार मिलना चाहिए? 1 in each half ऑफ द कैलेंडर ईयर, मतलब साल में 2 बार. OPC के मिनिमम डायरेक्टर्स कितने? OPC के मिनिमम डायरेक्टर्स कितने? मिनिमम 1. ठीक है, एक बात बताओ, ये एक डायरेक्टर साल में 2 बार किसको मीटेगा? हम तो लिख के आए हैं 1 in each half ऑफ द कैलेंडर ईयर. वो एक लौता तो नहीं मिल सकता ना. सो ऑब्वियसली पूरा सेक्शन डज नॉट अप्लाई टू OPC विद सिंगल डायरेक्टर. क्या उसके लिए मीटिंग, क्या उसके लिए नोटिस. ओके ना. कोरम फॉर मीटिंग, बोर्ड मीटिंग. ठीक है, अब ये सेक्शन बड़ा लॉजिकल है, इंपॉर्टेंट, इसलिए ध्यान से सुनना. सी, कोरम ना is one simple thing. It is 1/3 of total directors. ठीक है, और 2 directors, whichever is. बता दो क्या होना चाहिए अकॉर्डिंग टू यू. बोलो क्या होना चाहिए. लोअर, हमेशा 2 ही डायरेक्टर मिलेंगे फिर जिंदगी भर. विच एवर इज हायर है यहाँ पे.
ठीक है, क्यों? अदरवाइज हर बार 2 ही लोग मिलते रहेंगे ना। सी 2 वहां पे इसलिए नहीं रखा कि 2 लोगों को मिलवाएं। सी मिनिमम डायरेक्टर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी इज 3, उसका 1/3 क्या है? 1। वो किसको मीटेगा? इसलिए 2 रखा है कि कभी अगर 1 आ जाए तो कम से कम 2 तो मिले। ठीक है, लेकिन अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कोरम के ना 2 रूल्स हैं, एक है जनरल रूल एंड दूसरा है एक्सेप्शनल रूल। प्लीज ध्यान से समझना, लॉजिकल है। ठीक है, दूसरा है एक्सेप्शनल रूल। जनरल रूल एंड एक्सेप्शनल रूल, ये जनरल रूल माना जाता है। जनरली कोरम ऐसे हो जाती है, बट यू नो देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड सेक्शन 184, कहीं तो भी बैठा है आगे। वो बोलता है कि अगर डायरेक्टर इंटरेस्टेड है ना, इंटरेस्टेड इन द ट्रांजैक्शन, तो मैं ना उसको कोरम में नहीं गिनने दूंगा। तो अगर वो प्रेजेंट भी है उसको कोरम में नहीं गिना जाएगा। तो इफ यू अंडरस्टैंड, ये जो 1/3 आप मांग रहे हो ये डिसइंटरेस्टेड होंगे ना, क्योंकि इंटरेस्टेड को तो तुम गिनोगे नहीं। ठीक है, टोटल में तुम सबको गिन रहे हो, बट कोरम में प्रेजेंट में तो तुम सिर्फ डिसइंटरेस्टेड गिन रहे हो। डिड यू गेट द पॉइंट? ओके, अब मैं तुम्हें बोल रही हूँ, अगर मेरे टोटल डायरेक्टर्स 21 है, मुझे बताओ मेरी कोरम कितनी हुई? बोलो। 21 का 1/3 कितना होता है? 7। ठीक है, सो 7 और 2 विच एवर इज हायर। सोचना पड़ रहा है। 7, कोरम विल बी 7, लेकिन 7 कौन सी चाहिए? डिसइंटरेस्टेड चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टेड को तो 184 गिनने नहीं देगा। ठीक है, मैं तुम्हें बोल रही हूँ प्रेजेंट थे मेरी मीटिंग पे पूरे 21, लेकिन उसमें से डिसइंटरेस्टेड सिर्फ 5 थे, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स वर 16 इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स वर 16। अब मुझे एक बात बताओ, मेरी कोरम, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर केस हाउ विल द कोरम हैपन नॉर्मली? क्योंकि मेरे इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं 16, डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स हैं 5। कोरम तो यही वाला रूल है ना। बट इफ यू अंडरस्टैंड ये प्रॉब्लम, ये कुछ भी कर लो, कोरम जब नहीं आती तो मीटिंग का क्या करते हैं? एडजर्न करते हैं। इसको एडजर्न करके भी क्या हो जाएगा? बिकॉज द सेम पीपल विल कीप कमिंग। एंड इफ यू अंडरस्टैंड, प्रॉब्लम कोई सॉल्व होने वाली है नहीं है। ठीक है, एडजर्नमेंट का सिस्टम फंडा ये होता है कि जो नहीं आए वो आएंगे। यहाँ तो सब आ गए, बल्कि ये प्रॉब्लम ये 16 होने से नहीं है। 16 की बजाय अगर ये 15 भी होते सेम प्रॉब्लम होती, ये 17 भी होते सेम प्रॉब्लम होती, 18 भी होते सेम प्रॉब्लम होती। इफ यू अंडरस्टैंड, मेन प्रॉब्लम इज यहाँ मुझे 1/3 चाहिए, वो भी डिसइंटरेस्टेड। सो इफ यू अंडरस्टैंड, फंडा सिंपल है। डिसइंटरेस्टेड अगर मुझे 1/3 चाहिए मिनिमम, तो इंटरेस्टेड मैक्स टू मैक्स 2/3 हो सकते हैं। इफ यू लाइक हाउ? बिकॉज 1/3 प्लस 2/3 इज 1। मैथ्स। एनीबॉडी लाइक नहीं मैम इट इज 3/3? कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर नाउ कमिंग बैक। समझ में आ गया? मैक्सिमम 2/3 कैन बी इंटरेस्टेड। जब जब इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 से ऊपर जाएगा, यहाँ डिसइंटरेस्टेड 1/3 से नीचे आएगा, और ये प्रॉब्लम हर बार होगी। तो उन्होंने रूल बना दिया, बोले सुनो एक्सेप्शनल रूल, ऐसी प्रॉब्लम हुई तो तब कोरम विल बी बैलेंस डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स बीइंग मिनिमम 2। प्लीज याद रखना, मिनिमम 2 डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स कोरम नहीं है, कोरम बैलेंस डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स है बीइंग मिनिमम 2। तो अपना ये जो केस था जिसमें इंटरेस्टेड 16 थे, डिसइंटरेस्टेड 5 थे, सो इस केस में ना अपनी कोरम 5 की होगी, 2 की नहीं। इज दिस ओके? ये पूरा समझा? अब लेट्स गो एट। कोरम के ना 2 रूल्स हैं। वन इज कॉल्ड द जनरल रूल, अनदर इज कॉल्ड द एक्सेप्शनल रूल। ठीक है, जनरल रूल में इट इज 1/3 और 2 whichever इज हायर। एक्सेप्शनल में जब जब इंटरेस्टेड डायरेक्टर 2/3 और मोर होंगे, तब तब कोरम बैलेंस डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर होगी। और हमेशा यहाँ का एक सबसे बेस्ट पार्ट ये है, नॉर्मली अपना ऐसे होता है जो जनरल रूल से नहीं हो पाता उसको हम एक्सेप्शनल पे ले जाते हैं, राइट? कोई भी सेक्शन में। दिस इज द ओनली सेक्शन जहां पहले एक्सेप्शनल ट्राई करने का, नहीं हुआ तो जनरल ले जाओ। समझा? ठीक है, अब एक लास्ट सिंपल क्वेश्चन सो दैट मैं आगे बढ़ सकूं। टोटल डायरेक्टर्स हैं 12, ओके? प्रेजेंट एट अ मीटिंग इज 12, डिसइंटरेस्टेड इज 4। मुझे बता कोरम प्रेजेंट और नॉट प्रेजेंट। कोरम इज प्रेजेंट और नो? प्रेजेंट ना? कौन से रूल से? अरे ऑब्वियसली प्रेजेंट ना, 4 तो हो गए। कौन सा रूल? जनरल रूल, एक्सेप्शनल रूल। 2/3 और मोर है गाइस, इक्वल टू भी मतलब उस साइड आता है।
समझे? तो मैंने तुम्हें वही बोला पहले, एक्सेप्शनल लगाओ, नहीं लगा तो जनरल है। अगर एक्सेप्शनल का केस नहीं है तो जनरल है। ये एक्सेप्शनल का केस, वरना मैं पूछती क्यों ना तुमसे ऐसा क्वेश्चन। डिड यू गेट इट? ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड डिसइंटरेस्टेड डायरेक्टर्स बीइंग 4, मतलब इंटरेस्टेड डायरेक्टर सामने 8 है, विच इज इक्वल टू 2/3। तो एक्सेप्शनल रूल से कोरम होगी 4 डायरेक्टर्स। सी एमसीक्यूज में आना तो बच जाओगे, बट और कहीं आए तो एक्सप्लेनेशन लिखने में फंस जाओगे। ओके, नेक्स्ट ना, आगे बढ़ते हैं। मेरे को एक बात बताओ, जब कोरम की बात आई तो वी डिसाइडेड कि 2 होते, जनरल रूल, एक्सेप्शनल रूल, बट दैट इज ओनली फॉर अ नॉर्मल कंपनी। ये जो सेक्शन 8 कंपनीज होती है ना, सेक्शन 8 कंपनीज, ये अपना अलग ही रूल लेके घूम रही है। इनका रूल इज 8 मेंबर्स और 25% ऑफ द टोटल मेंबर्स, मतलब डायरेक्टर्स, हाँ, विच एवर इज लोअर, मेंबर्स ऑफ बोर्ड दे मीन, विच एवर इज लोअर। नाउ अंडरस्टैंड, 8 और 25% अगर इसमें हायर रखा तो हमेशा 8 आ सकता है। सो दैट वुड मीन एनपीओ के मिनिमम डायरेक्टर्स 8 चाहिए, इसलिए विच एवर इज लोअर। ना यहाँ पे मिनिमम 2 क्यों लिखा है? क्योंकि एनपीओ कुड हैव 4 डायरेक्टर्स, 3 डायरेक्टर्स पे पब्लिक कंपनी हो जाती है, 4 हो सकते हैं, 4 का 25% कितना आएगा? विच एवर इज लोअर का रूल है, एक इंसान किसको मीटेगा, इसलिए यहाँ पे रखा है मिनिमम 2। 2 से कम पे तो मीटिंग ही नहीं होती ना यार। इज दिस ओके? ठीक है, आगे बढ़ें। ओके, ये बहुत आ चुके हैं IFSC पब्लिक और प्राइवेट कंपनी। इसका भी रूल ये है दैट दे शैल अप्लाई एक्सेप्शन दैट इंटरेस्टेड डायरेक्टर में पार्टिसिपेट इन सच मीटिंग प्रोवाइडेड डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट इज मेड। ये ना 184 में ध्यान रखना है इस बात को, ठीक है। एक और है, साथ में ही ध्यान रखना। नेक्स्ट इज प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी में भी रूल है कि इंटरेस्टेड डायरेक्टर ने अगर इंटरेस्ट डिस्क्लोज कर दिया फिर वो पार्टिसिपेट कर सकता है, मतलब वो कोरम में काउंट होगा, ठीक है। एंड आई हैव गिवन इट एज ASC रेफरेंस, रिमेंबर दिस पॉइंट इन सेक्शन 184। इज दिस ओके? अब आगे बढ़ते हैं। 174(2) एडजर्नमेंट। मेरे को एक बात बताना, अगर मीटिंग पे कोरम नहीं आती तो मीटिंग का क्या होता है? अगर मीटिंग पे कोरम नहीं आती, मीटिंग का क्या होता है? मीटिंग एडजर्न होती है, एडजर्न टू नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस, ठीक है। एंड व्हाट इफ दैट टर्न्स आउट टू बी अ नेशनल हॉलीडे? सक्सीडिंग डे और प्रीसीडिंग डे? इट्स द सक्सीडिंग डे, ठीक है, याद रखना है इस बात को, इट्स अ सक्सीडिंग डे। एंड सेकेंडली इट्स अ नेशनल हॉलीडे। ऐसे ना, पब्लिक हॉलीडे नहीं बोला मैंने, पब्लिक हॉलीडे पे मीटिंग हो जाती है, याद रखना। वो कब का पब्लिक हॉलीडे बदल के नेशनल हॉलीडे बन चुका था, इन 2013 का एक्ट इटसेल्फ, ठीक है। सो अब अगर क्रिसमस के दिन मीटिंग करनी है चलेगा, हेलो, चलेगा, ठीक है ना। कब नहीं हो सकती? हाँ, कितनी नेशनल हॉलीडेज होती हैं इंडिया में? कितनी नेशनल हॉलीडेज होती हैं? एनीबडी हु सेड 2? तुम 2 अक्टूबर भूल गए हो, 3 है फिलहाल, ठीक है। सो फॉर नाउ कमिंग बैक, कोरम, अगर कोरम इज नॉट प्रेजेंट देन मीटिंग विल बी एडजर्न। लेकिन यहाँ पे ना ये याद रखना, AOA के पास फर्स्ट प्रेफरेंस है, पहला राइट AOA का है। AOA, इफ AOA डिसाइड्स द डेट देन दैट डेट, बट अगर AOA साइलेंट है तो फिर हाँ, नेक्स्ट वीक, सेम टाइम सेम प्लेस, एंड इफ दैट टर्न्स आउट टू बी अ नेशनल हॉलीडे देन द सक्सीडिंग डे विच इज नॉट अ नेशनल हॉलीडे। मेक सेंस? पढ़ लिया ध्यान से? एक क्वेश्चन पूछूं पहले तो, ऑब्वियसली हाँ, 1% कंपनी इज एग्जेम्प्ट जिसका इकलौता डायरेक्टर हो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन का जवाब दे दो, सुन लो पहले। यहाँ पे दिया कि हमने मीटिंग बुलाई थी 18 जैन को, ड्यू टू लैक ऑफ कोरम नहीं हो पाई, फिर AOA ने बोला उसको एडजर्न करो नेक्स्ट वीक पे, सेम टाइम सेम प्लेस, विच इज 8th डे पे करना है, ऐसा लिखा है। एडजर्न मीटिंग की डेट बतानी है। सुनो, तुम्हें ना बस दिन गिनने हैं उंगलियों पे। अब भी अगर तुम्हारे सबके आंसर अलग अलग आए ना तो ये तुम्हारी उंगलियों का कमाल है। एक सिर्फ डेट चाहिए, एक डेट, सोचो। क्या है डेट? आई एम श्योर गिन ली होगी अब तक तो। डेट क्या है? 25 आई किसी की, 25 जैन, 27 आई, ओह किसी की 26 भी आई है। 26 तो 26 जनवरी होता है। अच्छा चलो ठीक है, लेट्स कैलकुलेट।
सबसे पहले 18th से they've clearly said 8th day 19 20 21 22 23 18th को थोड़ी गिनोगी 19 20 21 22 23 24 25 26 26 जनवरी आता है बट वो तो नेशनल हॉलीडे है तो कब होगा 27 26 को ही होगी. दिस इज द करेक्ट डेट. फिर लाइक मैम ये तो चीटिंग हो गई. कोई चीटिंग नहीं हुई. जस्ट लुक ओवर हियर. ये जो नेशनल हॉलीडे वाला रूल है ना वो सिर्फ इस साइड है, इस साइड नहीं है. इफ एवर डिसाइड्स ना तो कोई भी डेट चलता है, वो तो ऑटोमेटिक में होता है वो सब. मेक सेंस? ठीक है, तो वही ट्विस्ट था. बाकी इतना स्टूपिड क्वेश्चन क्यों पूछना मैं आपसे. 26 जनवरी इज द अल्टीमेट रिजल्ट. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट 174 हो गया. अब बात करते हैं 175 की. 175 इज रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन क्या है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स घर बैठे डिसाइड कर लें, क्योंकि हर चीज़ के लिए मिलेंगे तो उनका भी एफर्ट जाएगा बिकॉज दे हैव टू कम डाउन ईच टाइम, प्लस कंपनी के भी पैसे जाएंगे क्योंकि सिटिंग फीस देनी पड़ेगी. ठीक है, हाउ टू अवॉइड बोथ? तो मस्त तरीका है, घर बैठो और डिसाइड करो, विच इज कॉल्ड रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन. ठीक है, होगा क्या, एक पेपर पे ड्राफ्ट रेजोल्यूशन लिखेंगे, हर डायरेक्टर के घर भेजेंगे, सेम पेपर, अलग अलग चिट्ठियाँ नहीं जा रही, सर्कुलर है सेम. एक डायरेक्टर के पास जाएगा, हील रीड, हील साइन, 3 कॉलम होंगे, यस नो एब्सटेन, कोई भी एक में साइन करेगा, फिर नेक्स्ट पे जाएगा, थर्ड फोर्थ फिफ्थ. ये अमंग्स द डायरेक्टर्स घूमता है. पे नोटिस याद है? पे नोटिस, पोस्ट ईमेल हैंड डिलीवरी, यहाँ कुरियर भी अलाउड है. ठीक है, तो ये अमंग्स द डायरेक्टर्स घूमेगा इन वन ऑफ दीज 4 मोड्स एंड घूम के वापस कंपनी के पास आएगा. अगर मेजोरिटी वोट्स आर रिसीव्ड द रेजोल्यूशन पास्ड. ठीक है, लेकिन अगर 1/3 ऑफ द डायरेक्टर्स वांट कि नहीं ये तो मिलके डिस्कस होना चाहिए, ऐसे कैसे तुम कर रहे हो, सो दे विल हैव टू राइट टू द चेयरमैन. एंड अगर 1/3 ने अप्लाई किया है तो चेयरमैन विल अलाउ इट, कि फिर वो बोर्ड मीटिंग पे ही होगा. इज दिस ओके? सो passed by board procedure is circulated in draft together with necessary papers to all the directors in India, sent by pay plus courier, and अगर मेजोरिटी ने हाँ बोला तो अप्रूव्ड. ठीक है, एंड आई टोल्ड यू अगर 1/3 लोग चेयरमैन को बोले, चेयरपर्सन को, कि भाई दिस शुड बी डन ओनली एट अ बोर्ड मीटिंग, इट विल बी डन एट अ बोर्ड मीटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव इज, कोई भी रेजोल्यूशन जो मीटिंग में पास होता है उसका प्रूफ क्या होता है? मिनट्स. अब ये तो बोर्ड मीटिंग पे हुआ नहीं बिकॉज दिस वाज एन ऑल्टरनेटिव बोर्ड मीटिंग, ये तो मिनट्स में होगा नहीं, इसका प्रूफ क्या है? इफ लाइक मैम वो रेजोल्यूशन खुद ही प्रूफ है. कोई भी रेजोल्यूशन का प्रूफ सिर्फ मिनट्स होता है. सो हाउ टू क्रिएट अ प्रूफ? उन्होंने कहा कोई बात नहीं, पास हो गया, इफेक्टिव हो गया, बट इसके प्रूफ बनाने के लिए एट द इमीडिएटली नेक्स्ट मीटिंग विच विल हैपन आफ्टर दिस इज पास्ड, उस पर दिस विल बी रेड आउट सो दैट वो मिनट्स का पार्ट बन जाए. सो मेक सेंस? ये हुआ सेक्शन 175. Now coming to 176. 176 is defect in appointment not to invalidate the prior act. सबसे छोटा है, सबसे काम का भी है. अगर डायरेक्टर अपॉइंट होने के कुछ साल बाद हमें पता चला ओहो इसकी अपॉइंटमेंट में तो डिफेक्ट था, ये तो प्रॉपर्ली अपॉइंट नहीं हुआ, तो आज से तो वो डायरेक्टर नहीं, ये तो पक्का है. बट इतने ड्यूरेशन में वट एवर थिंग्स दैट ही हैव डन, द एक्ट्स दैट ही हैज डन, विल दे बी वैलिड और वॉइड? Of course valid. You can't go back and change them, na, each and every decision. So they just said act done prior to noticing defect is valid and anything after that is invalid. Makes sense? आगे बढ़ते हैं. Next section is something that you have heard about. 177 रिकलेक्ट करो क्या? ऑडिट कमेटी. हमने ऑडिट कमेटी पढ़ रखा है. कब पढ़ा था? जब आपने 149 किया था ना आईडी, तब. ठीक है, तो अगर तुम्हें याद हो आईडी का जो चार्ट था ना एप्लीकेबिलिटी का, सेम चार्ट इसका भी है. ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड. एप्लीकेबिलिटी चार्ट ये कहीं देखा देखा लग रहा होगा आपको. 10, 50, 100 लिस्टेड ऑलवेज रिक्वायर्ड. सेम चार्ट आपने पढ़ा है इन आईडी. ओके, नेक्स्ट एप्लीकेबिलिटी के बाद नेक्स्ट इज कॉम्पोजिशन. दिस इज समथिंग आई टोल्ड यू व्हेन वी वर डूइंग आईडी, बट आई स्टिल टेल यू अगेन. कॉम्पोजिशन के ना पॉइंट्स है. सबसे पहला जो कॉम्पोजिशन का पॉइंट है इज यू नीड मिनिमम 3 डायरेक्टर्स इन दिस कमिटी. ओके, सो सबसे पहले मिनिमम 3 डायरेक्टर्स चाहिए. सेकेंड इज दीज मिनिमम 3 में से मेजॉरिटी शुड बी आईडी. ओके, बट दिस इज नॉट एप्लीकेबल टू सेक्शन 8 कंपनीज. क्यों? सेक्शन 8 कंपनी में आईडी नहीं होते. ऑडिट कमिटी वो बनाएंगे बट उनके पास आईडी नहीं होते ना, तो बस 3 की ऑडिट कमिटी बनाएंगे. एंड दे ऑल्सो से मेजॉरिटी शुड बी फाइनेंशियली लिटरेट. गाइस प्लीज अंडरस्टैंड, LODR अगर हम आप जो आगे जाके पढ़ोगे LODR में आपको पता चलेगा ये रूल्स फॉर लिस्टेड कंपनी LODR मानना पड़ेगा फिर. ठीक है, लिस्टेड कंपनी में ये मेजॉरिटी, वहाँ पे LODR में ये मेजॉरिटी नहीं होता, ये ऑल होता है. सब फाइनेंशियली लिटरेट चाहिए. ये मेजॉरिटी नहीं होता, ये 2/3 होता है. सो दैट यू विल नो देयर. एंड आपको दोनों याद रखने चाहिए क्योंकि ICAI ने किसी ने डिस्टिंग्विश पूछ लिया ना दोनों में, दैट ऑडिट कमिटी अंडर कंपनीज एक्ट एंड ऑडिट कमिटी अंडर LODR, तो फंस जाओगे बहुत बुरे. ओके, सो जस्ट कीप इट इन माइंड. सो मिनिमम 3 डायरेक्टर्स, मेजॉरिटी आईडी एंड मेजॉरिटी फाइनेंशियली लिटरेट.
ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑडिटर क्या करेगा ऑडिट कमेटी में. रोल ऑफ ऑडिटर इन ऑडिट कमेटी. ही हैज़ अ राइट टू बी हर्ड, ही डज नॉट हैव अ राइट टू वोट, क्योंकि वो तो ऑडिट कमेटी डिसाइड करता है ना. फॉर एग्जाम्पल को ऑडिटर आके बोले कि आपका इंटरनल कंट्रोल वीक है, सो डायरेक्टर्स आर लाइक ओके. बाकी सबसे पूछा कितनों को लगता है इंटरनल कंट्रोल वीक है, ऑडिटर बोलता है मेरे को. यू हैव अ राइट टू बी हर्ड, नॉट टू वोट. ठीक है. नेक्स्ट, डिस्क्लोजर इन बोर्ड रिपोर्ट. Board report must disclose composition of audit committee, instances where board has not accepted the recommendation along with reasons. Okay. अब आते हैं विजिल मैकेनिज्म पे. विजिल मैकेनिज्म क्या है? विजिल मैकेनिज्म इज विसल ब्लोअर मैकेनिज्म. विसल ब्लोअर मैकेनिज्म. ठीक है. सो एप्लीकेबिलिटी, पहले तो विसल ब्लोअर मैकेनिज्म या विजिल मैकेनिज्म सबको नहीं सेट करना. इसका फंडा ये है कि अगर कल को कोई भी गड़बड़ हुई ना कंपनी में, किसी को भी फ्रॉड वर्ड पता चला, तो हर इंसान शुड हैव अ राइट टू कंप्लेन, बट टू द राइट अथॉरिटी सच दैट कि वो खुद भी ना फंस जाए उसमें. ओके. तो ये सेटअप करना पड़ेगा एक मैकेनिज्म. कौन कौन करेगा? नॉट ऑल द कंपनीज लिस्टेड तो ऑब्वियसली. सो देव सेट कंपनी लिस्टेड ऑलवेज. अदर्स, एनी वन ऑफ द टू कंडीशन सेटिस्फाइड. या तो पब्लिक डिपॉजिट एक्सेप्ट किया है या बोरिंग्स ओनली फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्सीड 50 crore. 50 है वो, एक्सीड 50. अगर आपकी बुक में भी गलती से 5 crore नहीं होगा, 50 crore ही होगा. सो 50 crore एक्सीड हुआ तो ओके. बट याद रखना ओनली फ्रॉम बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. टोटल बोरिंग नहीं, इसमें डिवेंचर डिपॉजिट नहीं गिन रहे हो आप. ठीक है. पब्लिक डिपॉजिट तो 1 रुपये का भी है तो भी आपको क्रिएट करना है. सो एनी कंपनी व्हाटसोएवर यू आर. ओके. नाउ objective of formation of vigil mechanism. This is just so that every person gets to report genuine concerns. Okay. Safeguards against victimization. ऐसा ना हो जिसने कंप्लेन किया वो बेचारा खुद ही फंस जाए. तो you'll have to take adequate safeguards against victimization so that कोई इंसान की हिम्मत तो हो कि कंप्लेन करे. ओके. नेक्स्ट, अगर लिस्टेड कंपनी हो तो आप LODR मानोगे. मेक सेंस. ये हुआ 177. अब आगे बढ़ते हैं. टॉकिंग अबाउट 177 की अप्रूव. 177 में ना इनके पास एक बहुत इंपॉर्टेंट पावर बोलो, ड्यूटी बोलो, टू अप्रूव रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. याद रखना यहाँ पे तो ये सिर्फ एक बार आएगा 177 और ख़त्म हो जाएगा. जब आप 188 पहुँचोगे, 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन तब ना इसका जिक्र नहीं होगा. आपको खुद ही याद रखना है इसको. ध्यान से सुनना. ऑडिट कमिटी हैज टू अप्रूव ऑल द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल. ओके. वेदर इट इज़ 188 वाला या नहीं, क्योंकि 188 में कुछ स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शंस ही आते हैं. ठीक है. सो ऑडिट कमिटी सपोज टू अप्रूव ऑल द रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस फर्स्ट ऑफ ऑल. लेकिन उनको हर ट्रांजैक्शन को इंडिविजुअली अप्रूव करना जरूरी नहीं है. वो ओमनिबस अप्रूवल लेके पास कर सकते हैं. ओके. सो जस्ट अंडरस्टैंड. ऑडिट कमिटी शैल अकॉर्ड अप्रूवल फॉर रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस. दे मे मेक ओमनिबस अप्रूवल ऑल्सो इन केस ऑफ ट्रांजैक्शन अदर देन 188. मतलब वो स्पेसिफाइड को छोड़ के. अगर ऑडिट कमिटी इज नॉट अप्रूविंग देन दे विल मेक रिकमेंडेशंस टू बोर्ड कि हम क्यों नहीं अप्रूव कर रहे. In case transaction involving up to 1 crore का अमाउंट entered into by director such and audit committee ने अप्रूव भी नहीं किया और बाद में उसको ratify भी नहीं किया, तो that transaction shall be voidable at the options of audit committee. और 1 crore से ऊपर होता है तो वो void ही होता है. ठीक है. नेक्स्ट, if the transaction is with related party and if the transaction is with related party, director concerned shall indemnify the company. And lastly, provision of this clause shall not apply to a transaction between holding company and wholly owned subsidiary. आई होप यू नो. सिर्फ 188 इसको छेड़ता है, बाकी सब लोग नहीं छेड़ते. सो एक्सेप्ट फॉर 188. मेक सेंस. अब ये याद रखना 188 में आपको ये याद आ जाए बस कि ऑडिट कमिटी अप्रूवल भी है. ठीक है. सो नाउ मूविंग अहेड आते हैं 178 पे. 177 वाज ऑडिट कमिटी. उसी के कंपैरिजन में अगर हम ये नॉमिनेशन रेमिशन कमेटी पढ़ेंगे तो हमें याद भी होगा, वरना हमें नहीं याद होगा. ठीक है. सो सबसे पहले टॉकिंग अबाउट नॉमिनेशन रेमिनेशन कमेटी. ये क्या है? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कमेटी है. नॉमिनेशन एंड रेमिनेशन भी है और स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप भी है. तो स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप इज अ ग्रीवेंस एड्रेसल मैकेनिज्म एंड रेमिनेशन नॉमिनेशन एंड रेमिनेशन कमेटी इज नथिंग बट योर HR डिपार्टमेंट, जो लोगों की रेमिनेशन डिसाइड करता है, कौन अपॉइंट होना चाहिए वगैरह ये सब करता है. ओके. ना टॉकिंग अबाउट एप्लीकेबिलिटी, इनकी एप्लीकेबिलिटी भी ID वाला ही चार्ट आएगा. So that means every company which requires ID requires audit committee and requires nomination remission committee. Okay, see this? कहीं देखा ये चार्ट? ऑडिट कमेटी में भी देखा है, ID में भी देखा है. ठीक है. नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट कॉम्पोजिशन. इस कॉम्पोजिशन को ना उससे कंपेयर करते जाएंगे ऑडिट कमेटी से. ठीक है. सो ऑडिट कमेटी में था मिनिमम
3 डायरेक्टर्स, यहाँ पे होगा मिनिमम 3 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। गाइज याद रखना इसको, इट्स लाइक यहाँ नॉन एग्जीक्यूटिव क्यों होते हैं, लॉजिक से याद रखोगे तो भूलोगे नहीं। ये ना आपकी HR डिपार्टमेंट है यार, मतलब नॉमिनेशन नोमिनेशन कमेटी। अगर यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मतलब एम्प्लॉई डायरेक्टर्स बैठ गए तो बहुत बाइस्ड हो जाएंगे, क्योंकि दे आर सपोज टू डिसाइड इंक्रीमेंट फॉर पीपल। तो फंडा सिंपल है यार, अगर मैं लोगों का इंक्रीमेंट डिसाइड करूँ तो पहला इंक्रीमेंट मेरा हो, और अगर मेरा नहीं हो रहा तो किसी का नहीं हो रहा। ओके इसलिए वो बायस ना हो, इसलिए यहाँ पे सारे नॉन एग्जीक्यूटिव ही होते हैं। मिनिमम 3 डायरेक्टर्स भी जो होते हैं वो नॉन एग्जीक्यूटिव होते हैं, बाकी सब भी। सिर्फ एक एग्जीक्यूटिव अलाउड होता है, दैट विल कम टू इट लेटर। ओके वहाँ पे ID कितने चाहिए थे, ऑडिट कमेटी मेजॉरिटी, यहाँ चाहिए मिनिमम हाफ, सेम है अलग अलग है, ठीक है। थर्ड, वहाँ पे फाइनेंशियल लिटरेट चाहिए था, क्योंकि ऑडिटर को वही समझ पाएगा। यहाँ फाइनेंशियल लिटरेट का क्या करोगे, सो वो नहीं है, बट यहाँ एक अलग रूल है। चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी चेयरपर्सन ऑफ दिस कमिटी, ही मे बिकम अ मेंबर, ठीक है। चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी कैन नॉट बी चेयरपर्सन ऑफ द कमिटी, ही मे बिकम अ मेंबर। फिर चाहे वो एग्जीक्यूटिव हो या नॉन एग्जीक्यूटिव हो, तो ये अकेला एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, ही हु कैन बी अ पार्ट ऑफ दिस जस्ट बिकॉज ही इज चेयरपर्सन ऑफ द कंपनी। इज दिस ओके? नेक्स्ट टॉकिंग अबाउट 178 का नॉन एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 8 वाली कंपनीज को नहीं लगता है, स्पेसिफाइड IFSC पब्लिक कंपनी को नहीं लगता। ओके अब आते हैं स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी पे। दिस इज रिक्वायर्ड ओनली बाय दोज पीपल जिनका टोटल 1000 से ऊपर जाए इन नंबर्स। क्या? शेयर होल्डर, डिबेंचर होल्डर, डिपॉजिट होल्डर या सिक्योरिटी होल्डर इन 1 फाइनेंशियल ईयर अगर 1000 के ऊपर गए। एंड प्लीज अंडरस्टैंड दिस स्टैंड्स फॉर और, नॉट एंड। टोटल नहीं मार लेना, ठीक है। इंडिविजुअली इनमें से कोई एक अगर 1000 के ऊपर गया तो ये कमेटी कॉन्स्टिट्यूट होगी। ऑब्वियसली वो ध्यान सबका रखेगी, बट वो कॉन्स्टिट्यूट तभी होगी। ओके सो नेक्स्ट करेंगे क्या, देयर बी अ चेयरपर्सन एंड अदर मेंबर्स जो उनको सही लगे। स्टेक होल्डर्स रिलेशनशिप कमिटी शैल कंसिडर ऑल द ग्रीवेंसेस। इज दिस ओके? नेक्स्ट अगर कॉन्ट्रवेंशन हुआ तो देयर बी पनिशमेंट। पनिशमेंट क्या होगा? कंपनी शैल बी पनिशेबल विद 1 लाख to 5 लाख, OID अप टू 1 ईयर 25,000 to 1 लाख और विद बोथ। बट तुम्हें नहीं लग रहा यू बिकमिंग टू स्ट्रिक्ट? इफ आई डोंट रिजॉल्व समबडीज ग्रीवेंस आई विल बी पुट टू जेल। तो दे सेड नो नो, अगर गुड फेथ में नहीं रिजॉल्व किया तो चलेगा। इज दिस ओके? ठीक है। नेक्स्ट 178 के बाद आते हैं 179 पे, ठीक है। 179 इज पावर्स ऑफ बोर्ड। ये मस्त सेक्शन है, थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है, इसलिए ध्यान से सुनना प्लीज, अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे ना। About powers of board, next section. See, understand this particular section is very important, guys. Reason being, powers of board ना एक ऐसी चीज़ है which is normally वैसे general, ठीक है, because the board was empowered, board was constituted ताकि कंपनी को संभाल सके। कंपनी आर्टिफिशियल है, so board is entitled to do anything that the company can do. Okay, so लेकिन there are certain powers given to the shareholders like declaration of dividend etc. that cannot be absorbed by board. So board can do anything but not the powers of shareholders. Okay, next. If shareholders want ना, they can pass a resolution and restrict the board. Like बहुत ज़्यादा powers हो गए तो तुम restriction डाल सकते हो, but those restrictions will have prospective effect, not retrospective. Okay, so if you see this, any regulation will not invalidate the prior acts. ठीक है। अब बहुत सबसे important point of 179 is that 179 में ना एक चीज़ दिया था, there are certain powers. Do you know? बोर्ड को हमने बहुत पावर्स दिए। ओके बोर्ड के पास ना उन पावर्स को एक्सरसाइज करने के 2 तरीके हैं, ठीक है। 1 इज RBC रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन, एंड दूसरा इज कॉलिंग अ बोर्ड मीटिंग, ठीक है। RBC एंड बोर्ड मीटिंग वो चाहे तो घर बैठे कर सकते हैं, वो चाहे तो मीटिंग बुला के कर सकते हैं। यू टेल मी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें कहाँ डिस्कस होनी चाहिए, घर बैठे या मीटिंग बुला के? इंपॉर्टेंट चीज़ है ऑब्वियसली बोर्ड मीटिंग बुला के, ठीक है। सो व्हाट दे डिड वाज, हाउ डू आई इंश्योर वो लोग RBC नहीं करेंगे उसके लिए, तो उन्होंने ना रूल बना दिया दैट देयर आर सर्टेन पावर्स व्हिच कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट अ बोर्ड मीटिंग, मतलब नॉट बाय RBC। अब वो पावर्स बहुत सारे हैं, इसलिए प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनना, ठीक है। सो दोस पावर्स आर बोर्ड मीटिंग, द डायरेक्टर्स विल एक्सरसाइज दीज ओनली एट अ बोर्ड मीटिंग। उसको याद रखने का निमोनिक इज ABC दिल फ्रॉग। ओके ABC दिल फ्रॉग, ये इट्स लाइक याद कैसे रखना है, दिल फ्रॉग, यू नो कुछ लोगों का दिल फ्रॉग जैसा होता है, एक से एक पे वो चलते रहता है, एक जगह टिकता नहीं है, बस वही कंसेप्ट याद रखना। बट ऑब्वियसली इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद दिल एंड फ्रॉग, इट इज ABC दिल फ्रॉग इज बेसिकली दीज आर द पावर्स विच कैन बी एक्सरसाइज्ड ओनली एट अ बोर्ड मीटिंग। सी लिसन टू मी वेरी केयरफुली, आई नो तुम्हारे पास बुक है तुम रीड कर सकते हो, बट आज से पहले से कितनी बार हुआ है ये ABC दिल फ्रॉग ना गाइस, 13 पावर्स हैं। ओके आज से पहले ऐसा कब हुआ है कि आपने 13 का लिस्ट पढ़ा और तुरंत याद हो गया? कभी नहीं। सो इसलिए अभी ना ध्यान से सुनो, आई टेल यू देयर इज अ वे टू रिमेंबर इट, बस सुनते जाना। इस ABC दिल फ्रॉग को देखते रहो एंड सुनते जाओ,
ट्रस्ट मी, बाय द एंड तुम्हें 13 याद हो जाएंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले ए इज अमालगमेशन. यू टेल मी समथिंग गाइस, तुम जब अपना पर्सनल लाइफ में अमालगमेशन करना होता है, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग राइट? तुम्हें जब अपनी पर्सनल लाइफ में अमालगमेशन करना होता है तो तुम मिलने जाके डिसाइड करते हो, व्हाट्सएप पे चैट करके मम्मी कार्ड छपवा दो? मिलके डिसाइड करोगे या व्हाट्सएप पे चैट करके ही हो गया अपना अमालगमेशन डिसाइड? मिलके करोगे ना. उस दिन तो बारिश आए, तूफान आए, मिलना ही पड़ेगा, ऐसा थोड़ी होता है. तो खुद का अमालगमेशन है तो मिलके डिसाइड करोगे, और कंपनी का अमालगमेशन घर बैठे डिसाइड हो रहा है. मिलके करो, ठीक है. सो ए इज अमालगमेशन सबसे पहले, ठीक है. बी कैन यू सी ट्वाइस? फर्स्ट बी इज बोरोइंग्स. ओके, बोरोइंग्स व्हेन यू बोरो फंड्स, ठीक है. बोरोइंग्स इज जब हम लोन्स लाइबिलिटीज लेते हैं. इफ यू अंडरस्टैंड दीज बोरोइंग्स आर टेकिंग ऑन द हेड ऑफ कंपनी, ठीक है. घर बैठे कैसे डिसाइड कर रहे हो बोरो करना है कि नहीं? हो सकता है बोरोइंग की जरूरत ही ना हो, तो जब लाइबिलिटी बढ़ा रहे हो तो मिलकर डिसाइड करो, ठीक है. सो देयर इज ए इज स्पीक अप गाइस, बोलोगे नहीं तो याद नहीं होगा. ए इज अमालगमेशन, बी इज बोरोइंग, सेकंड बी इज बायबैक. सॉरी, सेकंड बी इज बायबैक. बायबैक ऑफ शेयर्स. तुम्हें पता है कंपनीज जितना फ्रीक्वेंटली, कंपनी के बहुत पैसा आ गया तो कंपनी क्या करेगी? फाइनल डिविडेंड का रेट बढ़ा देगी. और पैसा आ गया, इंटरिम डिविडेंड दे देगी. और आ गया, बोनस देती है, बट बायबैक नहीं करती. जबकि इफ यू अंडरस्टैंड लाइक अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोनस इंक्रीजेस माय फ्यूचर डिविडेंड लाइबिलिटी, whereas buyback reduces my future dividend liability. Still they are ready to give bonus, not buyback. Why? Because buyback reduces your market price also. Buyback में ना आप वो कैपिटल रीपे कर रहे हो जो आपको एक्चुअली लिक्विडेशन के टाइम पे रीपे करना चाहिए था. सो एज सुन एज यू स्टार्ट बाइंग इट बैक, तो पब्लिक लगता है वो लिक्विडेशन का समय आ गया, कंपनी का गोइंग कंसर्न इज ऑलरेडी गॉन, एवरीबडी कम्स डाउन टू सेल दो शेयर्स. इफ इट इज नॉट प्रॉपरली प्लान ना, बायबैक कुड बी डेंजरस. और अगर तुम बायबैक करने का सोचो तो घर पे बैठ के थोड़ी होता है प्रॉपर प्लानिंग, ठीक है. सो एज तुम ना अभी घर पे बैठ के भी बोल सकते हो. ओके, ए इज अमालगमेशन, बी बोरोइंग्स, सेकंड बी बायबैक, ठीक है. सी इज कॉल्स. यू नो, कॉल टाइम टाइम पे किया जाता है बिकॉज वो पैसा जो वहां से आएगा कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द स्पेसिफाइड पर्पस. कहीं और यूज कर नहीं सकते, आइडल रख नहीं सकते, ऑडिटर रिपोर्ट कर देता है. सो फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन देव सेड कि दीज थिंग्स विल बी डन ओनली एट अ बोर्ड मीटिंग, कि कॉल करना है या नहीं. ए B1, B2, C स्पीक अप, C कॉल्स, ठीक है. ABC हो गया. अब बिल, D इज डिबेंचर्स. यू नो डिबेंचर्स आर सिक्योर्ड, whereas बोरोइंग्स, मैम बोरोइंग हो तो क्या था, वो अनसिक्योर्ड था. ये सिक्योर्ड डिबेंचर्स है. सी डिबेंचर्स का प्रॉब्लम है, सबसे पहले वो सिक्योर्ड होंगे. दूसरा प्रॉब्लम ये डिबेंचर्स के साथ आता है डिबेंचर ट्रस्टी. तुमने इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की सम्स पढ़े हो तो तुम्हें रियलाइज होगा हर कोई कुछ ना कुछ फॉरगिव कर रहा है, ठीक है. बट डिबेंचर होल्डर्स ही अकेले होते हैं. इफ दे आर फॉरगोइंग देयर इंटरेस्ट, दे वांट 9 की जगह 11% का डिबेंचर. ऐसे लोग ये कुछ नहीं छोड़ता. डिबेंचर ट्रस्टी ना फिर हर काम में टांग अड़ाएगा. सो दैट इज द रीजन दे सेड कि अगर डिबेंचर होल्डर्स पॉइंट लाने पड़ रहे हैं, मतलब ऐसी जरूरत आन पड़ी कि पैसों के लिए डिबेंचर्स इशू कर रहे हो, मिल लो. शायद बोरोइंग मिल जाए, शायद अनसिक्योर्ड मिल जाए. ओके, ए बी बोलो, B1, B2, C, D डिबेंचर्स. आई इज इन्वेस्टमेंट. तुमने पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पढ़ा होगा इफ यू डन विद SFM. अगर बाकी है तो तुम पढ़ लोगे. पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक अपने आप में पूरा गेम है यार. कहीं भी पैसा इन्वेस्ट करने से पहले तुम खुद का पैसा तुम कहीं भी इन्वेस्ट कर देते हो. आज तुम्हारे पास 50,000 जमा हो गए, तुमने मुझसे आके पूछा कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मैंने बोला जा गोल्ड खरीद लोगे ना. अगले दिन जाके ज्वेलर के पास और 10 लोगों से पूछोगे, फिर उस 50,000 को भी डाइवर्सिफाई करोगे, 10-10 करके इन्वेस्ट करोगे. वाई? बिकॉज इन्वेस्टमेंट माना एसेट क्रिएट होता है, बट गलत जगह गया तो डूब जाएगा पैसा. कंपनी के भी इन्वेस्टमेंट बोर्ड मीटिंग पे ही डिसाइड होंगे, ठीक है. सो A, B1, B2, C, D, I, L लोन्स. किसी को लोन देने से पहले उसकी क्रेडिबिलिटी चेक की जाती है, ऐसे नहीं उठा के पैसे देते हैं, ठीक है. सो लोन्स आप जो दे रहे हो तो यू हैव टू डू इट एट अ बोर्ड मीटिंग ओनली. ABC दिल हो गया. अब F कमिंग टू अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गाइस. तो बता दो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ना कंपनी का साल भर का रिजल्ट है. उस रिजल्ट को मिलकर डिस्कस करोगे ना तो यू विल नो कहाँ गलत गए, कहाँ सही गए, क्या आगे करना है क्या नहीं. घर बैठे रिजल्ट कब से एनालाइज होने लग गए, ठीक है. सो अडॉप्शन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विल बी डन ओनली एट अ बोर्ड मीटिंग. ABC दिल फ्रॉग. R इज रिकंस्ट्रक्शन. फर्स्ट वाले ए में अमालगमेशन हुआ था, बट व्हाट इफ डीमर्जर हो रहा है, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन, ऐसा कुछ हो रहा है, उसके लिए भी तो मिलके ही डिसाइड करोगे ना. सो R इज रिकंस्ट्रक्शन, O इज अदर्स. लाइक वाह ये मिल गया. अब क्या करेंगे ना, हम 4 याद रखेंगे, एंड में अदर्स लिख देंगे. नहीं, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली. ये अदर्स भी है ना O, ये एज में भी प्रिस्क्राइब था, जिसका प्रिस्क्रिप्शन आ चुका है, 3 आ गए हैं, विच वी रिमेंबर एज पा. तो अब अदर्स एक्सेट्रा कुछ नहीं है, ठीक है. पा है, ध्यान से सुन लो. सबसे पहला P इज पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी. दूसरा A इज अपॉइंटमेंट ऑफ KMP, की मैनेजरियल पर्सनल, जिसको डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं, ठीक है. एंड नेक्स्ट A इज अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर. एक सेकेंड, स्टैट ऑडिटर नहीं, सेक्रेटेरियल ऑडिटर है, इंटरनल सेक्रेटेरियल ऑडिटर
एंड योर इंटरनल ऑडिटर, ठीक है। प्लीज स्टैट ऑडिटर को शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं, ठीक है। सेक्रेटेरियल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर प्लीज याद रखना। एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी याद रखना, कॉस्ट ऑडिटर इस लिस्ट में नहीं आता। तो आई कैन प्ले दिस ट्रिक विद यू कि कंपनी ने सेक्रेटेरियल ऑडिटर एंड कॉस्ट ऑडिटर दोनों को रेजोल्यूशन बाय सर्कुलेशन से अपॉइंट किया। कॉस्ट ऑडिटर अलाउड है, सेक्रेटेरियल नॉट अलाउड है, ठीक है। सो पी पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, ए अपॉइंटमेंट ऑफ KMP, ए अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सो सेक्रेटेरियल एंड योर इंटरनल, ठीक है। अब जी इज गारंटी, इज दिस ओके। अब एक बार कोशिश करो बुक में बिना देखे, ट्राई रिकलेक्टिंग ऑल ऑफ देम। अगर अभी के अभी तुम बोल पाए साथ में तो इट्स डन, फिर ये हमेशा याद रहेगा। ए अमालगमेशन, B1 बोरोइंग्स, B2 बायबैक, C कॉल्स। गाइस अगर तुम नहीं बोल रहे हो ना तो दिस इज वेस्ट। मेरे रिवीजन की चिंता तुम मत करो, मेरा हो गया, ओके। D डिवेंचर्स, I इन्वेस्टमेंट, L लोन्स, F फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अडॉप्शन, R रिकंस्ट्रक्शन, O अदर्स। अदर्स में कौन कौन है? P पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन, A KMP अपॉइंटमेंट ऑफ KMP, A अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर, सेक्रेटरियल ऑडिटर एंड इंटरनल ऑडिटर, G गारंटी। ये ना 13 थे, 13, ठीक है। और फिलहाल हमें 13 याद है। अगर तुम सच में मेरे साथ बोल पाए हो, इफ यू रिपीटेड इट थ्रू आउट दिस वीडियो, ट्रस्ट मी दिस विल वर्क, ओके। सो दिस इज द लिस्ट, बहुत मस्त बड़ी सी लिस्ट है, इसमें सब आ गया, आपका पा वगैरह सब आ गया, ठीक है। आगे बढ़े, अब खत्म नहीं हुआ, अभी बाकी है, ठीक है। अब इसी लिस्ट की जो बात हो रही है, इसमें से ना देयर आर 4 सच पावर्स विच कैन बी डेलीगेटेड। ध्यान से सुनना, ऑल दैट आई टेल यू इज, आई एम जस्ट टेलिंग यू द अल्फाबेट, आंसर आप बोलोगे। आई एम सेइंग BLIG कैन बी डेलीगेटेड। अब बस तो मुझे ये बता दो, ये BLIG इसलिए डेलीगेट हो रहा है क्योंकि डे टू डे पावर्स है, ठीक है। अब मुझे बता दो कौन सा B, बोरोइंग या बायबैक? बोरोइंग। L लोन्स, I इन्वेस्टमेंट, G गारंटी। अगर आप ये अभी बोल पाए हो ना, आई होप यू अंडरस्टैंडिंग। ABC दिल फ्रॉग के फॉर्मेट में याद रखा था, बट अब हर अल्फाबेट का मीनिंग हमें याद है, रटा होता तो नहीं होता वो, ठीक है। सो BLIG कैन बी डेलीगेटेड। अब ध्यान से सुनना, मस्त ट्विस्ट है ये। BLIG, ये 4 ऐसे पावर्स हैं, नॉर्मल कंपनीज आर अलाउड टू डेलीगेट इट। डेलीगेट मतलब किसी एक बंदे को दे दो, वो कर देगा, ठीक है। वेयर एज NPOs आर अलाउड टू डेलीगेट दिस, जो कि हर एक को अलाउड है, ठीक है। प्लस NPOs आर ऑल्सो अलाउड टू डू इट बाय RBC। ये एक स्पेशल पॉइंट, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड दिस? ओके। सो इफ यू सी दिस, these four points C, F, G, K, which is BLIG, can be delegated, and in case of NPO they can do it by circulation also, ठीक है। And lastly, members of company can impose restriction by passing resolution. That is what I told you starting में, make sense, ठीक है। 179 हो गया। अब आते हैं 180 पे। 180 is restrictions on powers of board, ठीक है। restrictions on powers of board exactly है क्या? प्लीज अंडरस्टैंड दिस। रेस्ट्रिक्शंस ऑन पावर्स ऑफ बोर्ड, अभी 179 में हमने इतने पावर्स दिए, हमने उनको बोला तुम्हारे जो मन में आए करो। शेयर होल्डर्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करने के सिवाय यू आर अलाउड टू डू एवरीथिंग, ठीक है। बट दे ऑल्सो सेड कि 4 पावर्स ऐसे हैं दैट यू कैन डू ओनली आफ्टर पासिंग SR। 4 पावर्स आर सच दैट कैन बी डन ओनली आफ्टर पासिंग SR। सो इफ यू अंडरस्टैंड, ये हैं वो 4 पावर्स। मतलब पहले ये देख लो, इन चारों को करने के लिए यू नीड स्पेशल रेजोल्यूशन ऑफ मेंबर्स। कौन से 4 हैं? वी रिमेंबर इट एज board is restricted to sell। इफ यू अंडरस्टैंड, हमने इसको याद ऐसे रखा होता है कि जितने पावर्स आपने बोर्ड को दे देना, एक दिन बोर्ड जाके कंपनी को बेच देगा और तुम बैठे रहना, वी आर द ओनर्स। क्या के ओनर्स, ठीक है। सो ओनर का कुछ तो उसके हाथ में बचे, तो हमने बोला बोर्ड इज रेस्ट्रिक्टेड टू सेल, कंपनी को बेच मत आना। ये 4 पावर्स हैं जो SR के बिना नहीं होंगे। B इज बोरोइंग्स, एक्सीडिंग नेटवर्थ, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व प्लस सिक्योरिटीज प्रीमियम मिला के होता है नेटवर्थ। पहले सिक्योरिटीज प्रीमियम इंक्लूड नहीं होता था, अब होता है। इज दिस ओके? देन नेक्स्ट इज I इन्वेस्टमेंट, आउट ऑफ परचेज कंसिडरेशन। वैसे सारे इन्वेस्टमेंट अलाउड हैं कितने भी, बट परचेज कंसिडरेशन आया उसको शेयर होल्डर्स को देना होता है, और अगर उसे कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हो तो उनसे पूछना पड़ता है SR, ओके। लेकिन अगर ट्रस्ट सिक्योरिटीज में कर रहे हो तो चलता है विदाउट SR। नेक्स्ट R इज रेमिशन ऑफ एनी अमाउंट रिकवरेबल फ्रॉम अ डायरेक्टर। तुम सोच के देखो, डायरेक्टर से कुछ रिकवरेबल है, उसको बाकी डायरेक्टर्स अगर माफ करने लग गए तो ऐसे तो ये सब एक दूसरे को आपस में माफ करते रहेंगे और तुमको साफ कर देंगे। तो हमने कहा नहीं, डायरेक्ट बाकी किसी का अगर बैड डेट राइट ऑफ करना है
तो वो डायरेक्टर्स कर सकते हैं, बट अगर डायरेक्टर्स का राइट ऑफ करना है तो वो तो शेयर होल्डर्स करेंगे ना, तो इसके लिए विल नीड एन एसआर, ठीक है। एंड लास्टली एस इज सेल ऑफ अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग का मतलब क्या होता है? अंडरटेकिंग का मतलब होता है 20%, ये याद रखना, ठीक है। एंड अगर आप उसे फुल्ली बेच रहे हो तो 100% बेच रहे हो पूरा, या फिर सब्सटैंशियली बेच रहे हो, मतलब वापस 20% बेच रहे हो, उसका जो आपके पास वैल्यू है उसका 20% बेच रहे हो। इन सब के लिए आपको पहले एसआर लगेगा। उसके बाद पावर्स विल बी एक्सरसाइज बाय बोर्ड ओनली। हाँ, दिस पावर्स डज नॉट बिकम ऑफ शेयर होल्डर्स। पावर्स बोर्ड का ही रहेगा, बोर्ड ही एक्सरसाइज करेगा। खाली उसको एक्सरसाइज करने से पहले आपको शेयर होल्डर्स का एक ऐसा, मतलब 2 रेजोल्यूशन होंगे, एक जीएम पे एक बीएम पे। मेक सेंस, ठीक है। वन पॉइंट टू रिमेंबर, दिस सेक्शन इज नॉट एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी जो मन में आए कर भाई, तो इज दिस ओके, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, टॉकिंग अबाउट 181, ठीक है, कॉन्ट्रीब्यूशन टू चैरिटी। अभी जो चार्ट गलती से आ गया था वो अब आएगा। चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन सिंपल है, अप टू 5% कैन बी डन, 5% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट्स ऑफ पास्ट 3 years, ठीक है, विच कैन बी डन बाय बोर्ड ओनली। बट अगर आपको 5% से ज़्यादा चैरिटी करनी है तो शेयर होल्डर्स अप्रूवल चाहिए। फंडा सिंपल है, जेब उनकी है, चैरिटी करके सुकून तुम्हें मिल रहा है, जेब उनकी कट रही है, तो थोड़ा बहुत करोगे तो ठीक है, उससे ज़्यादा करोगे तो उनसे पूछ तो लो, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशन का रूल। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल पार्टी। देयर सम प्रॉब्लम विद द पीपीटी जिसके से पहले आ रहा है, बट ठीक है, अपना काम हो रहा है, ओके। सो नाउ बिकॉज इफ आई सिट टू करेक्ट इट राइट नाउ प्रॉब्लम होगी, इसलिए अभी के लिए सिर्फ समझ लो। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी, प्लीज अंडरस्टैंड दिस गाइस, कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी। पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन हमने थोड़ी देर पहले कहीं सुना था, एबीसी दिल फ्रॉग का ओ का पा पी, याद आएगा, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी के कुछ रूल्स हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले, हु कैन नॉट कॉन्ट्रीब्यूट। गवर्नमेंट कंपनी कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती, वाई? बिकॉज इट इज लाइक गवर्नमेंट गिविंग टू गवर्नमेंट, नो। गवर्नमेंट कंपनी वो होती है जिसमें 51% सीजीएसजी के पास हो। सीजीएसजी हमेशा किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी के कंट्रोल में चल रही होती हैं, विच इज कॉल्ड द कंट्रोलिंग पार्टी। तो ऐसे क्या होगा, वो वाली पार्टी ना सिर्फ खुद को ही कॉन्ट्रीब्यूशन दिलवाएगी गवर्नमेंट कंपनी से, ठीक है। देगी कंपनी, पैसा जाएगा गवर्नमेंट का, बट जेब भरेगी पॉलिटिकल पार्टी। तो इसलिए देव सेट गवर्नमेंट कंपनीज कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करती, क्योंकि वो अपने विल से नहीं कर सकती, दे आर फोर्स्ड टू, ठीक है। एंड नेक्स्ट, अ कंपनी विच इज इन एग्जिस्टेंस फॉर लेस देन 3 years। तो ये पता है कंपनी फर्स्ट ईयर से प्रॉफिट नहीं कमाती। सी, चैरिटी के बदले क्या मिलता है? सुकून। और पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन के बदले क्या मिलता है? सपोर्ट, ठीक है। तुम आज पॉलिटिक्स का फंडा ये होता है, आज हम तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, कल तुम जीत जाओ तो तुम हमें सपोर्ट करना, ठीक है। बट मेरे को एक बात बताओ, पहले 3 साल में कंपनी खुद को नहीं सपोर्ट कर सकती, वो क्या पॉलिटिक्स को सपोर्ट करने चली? इट्स लाइक खुद को तो संभाल ले, चले पॉलिटिकल पार्टी हम को सपोर्ट करेंगे, कौन हो तुम, ठीक है। सो फर्स्ट 3 years पहले खुद तो समझ जाओ, 3 साल लगते हैं ब्रेक इवन पे आने में कंपनी को। सो फर्स्ट 3 years तक दे कैन कॉन्ट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल पार्टी, ओके। गवर्नमेंट कंपनी तो जिंदगी में नहीं कर सकती, और बाकी कोई कंपनी 3 years नहीं कर सकती, ओके। मूविंग अहेड, पॉलिटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन मीन्स व्हाट? इट इंक्लूड्स एनीथिंग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट गिवन टू अ पॉलिटिकल पार्टी, ठीक है। नेक्स्ट, हाउ टू डू इट? यू नीड OR एट अ बोर्ड मीटिंग एंड कॉन्ट्रीब्यूट, ठीक है। लिमिट्स अब नहीं है, जब तक आएंगी नहीं तब तक ऐसे ही चलो। You have to disclose in P&L account as to what is the amount given, which party you have given, justification for giving to that particular party only, and this can be only through account payee check। मतलब कैश वैश नहीं दे सकते, चेक, बैंक ड्राफ्ट, ऐसा ही कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। नेक्स्ट, कॉन्ट्रवेंशन, द कंपनी शैल बी पनिशेबल विथ फाइन। अगर कॉन्ट्रवेंशन क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेनाल्टी है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट पेनाल्टी है, ध्यान से सुनना। अगर आपने इसका कॉन्ट्रवेंशन किया ना, जितना कॉन्ट्रीब्यूशन आपने दिया, जितना भी टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन का 5 times कंपनी पे पेनाल्टी है, 5 times। Look over here, please. Penalty in the contravention of this is going to be on the company as well as on the OID. Must penalty है, ध्यान से सुनना। Company is going to contribute 5 times of the amount contributed. जितना दिया उसका 5 times. And OID पे ना, यहाँ बेस्ट पार्ट ये है, you know हमेशा होता है imprisonment और फाइन, यहाँ पे it is imprisonment and fine. Imprisonment and fine, ठीक है। सो आई होप यू आर गेटिंग, मतलब एक ट्रिप तो तेरा पक्का है, कहाँ का? जेल का। इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months। गाइस मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर तुम फर्स्ट चैप्टर देख चुके हो और तुम्हें याद है तो तुम्हें शायद कुछ समझ में आएगा, बहुत मजा आएगा, ठीक है। तो सबसे पहले इम्प्रिजनमेंट अप टू 6 months, एंड यहाँ पे फाइन है, एंड फाइन है, विच इज अगेन 5 times ऑफ द अमाउंट। मैं जो भी बोल रही हूँ, अगर तुम्हारा दिमाग चल रहा है तो ही तुम्हें समझ आएगा, नहीं तो नहीं आएगा, ध्यान से सुनना। सो यहाँ पे ना इम्प्रिजनमेंट इज अप टू 6 months। सब कुछ भी हो सकता है, 6 months से कम भी हो सकता है, लेकिन अगर गलती से भी 6 महीने के लिए गए तो 5 साल के लिए गए। समझा कैसे?
क्योंकि इम्प्रिजमेंट 6 months का हुआ तो 164 आ जाता ना कि 5 years शुड हैव elapsed. समझ में आया? तो अगर गलती से 6 महीने के लिए गए तो 5 साल के लिए गए, पहली बात. ओके. दूसरी बात, अब ध्यान से सुनते जाना, सब लिंक होएगा. अगर ये जो रेजोल्यूशन था जिससे यू गिव अप्रूवल, ठीक है, इफ इट वॉज इन कॉन्ट्रावेंशन एंड इन केस इट वॉज यूनानिमस, तो नया बोर्ड अपॉइंट करने प्रमोटर्स या सीजी आएंगे. समझा कैसे? अगर यूनानिमस था, सबने हाँ बोला था, अगर सब 6 महीने के लिए गए तो सब 5 साल के लिए गए. पूरे बोर्ड को 167 में एक साथ वेकेशन लगेगा. एक साथ वेकेशन होता है तो 167 में प्रमोटर या सीजी आता है. डिड यू गेट इट? तुम सोच के देखो, क्वेश्चन स्टार्ट होगा 182 से और जाएगा कहीं और. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना. व्हाट आई एम टेलिंग यू इज, सबसे पहले फॉर एग्जाम्पल लेट्स से दे गिव यू अ क्वेश्चन, अ कंपनी गेव कॉन्ट्रीब्यूशन टू पॉलिटिकल पार्टी in contravention. The resolution was validly passed by the board of directors at board meeting unanimously, and the contribution which was allowed, क्योंकि अभी फिलहाल कोई लिमिट नहीं है, contribution which was allowed was 1 lakh and they contributed 10 lakh. The NCLT has decided to give them maximum imprisonment under the particular section. Decide the consequences. मस्त क्वेश्चन हो गया. मैक्सिमम 6 months है. सो कॉन्सिक्वेंस में यूल राइट कि पहले तो भाई ये कॉन्ट्रवेंशन हुआ है तो कंपनी 5 times देगी एंड OID अप टू 6 months एंड 5 times होता है, एंड बिकॉज उन्होंने मैक्सिमम बोला है तो उसको सबको 6 months के लिए जाएंगे. बट तुम्हें आगे ये भी लिखना पड़ेगा भाई, फिर तुम 5 साल के लिए गए और तुम 5 साल के लिए गए तो अब तुम पूरा बोर्ड खाली होगा, पूरा बोर्ड खाली होगा तो प्रमोटर्स आएंगे या सीजी. मतलब जस्ट थिंक ऑफ द लेवल ऑफ अनसेफ टू राइट. आर यू गेटिंग इट? बाकी पढ़ना तुम्हें आता है यार, पढ़ने के लिए तुम यहाँ नहीं बैठे हो, लिखना कैसे उसके लिए तुम यहाँ बैठे हो. Is this okay? This is the best thing you can learn from me. Okay, moving ahead. So the next thing is contravention की penalty which I just wrote it for you. Moving ahead, 183 contribution to National Defence Fund. ये एक ऐसा contribution है जितना मर्जी करो, because if you understand National Defence Fund यार, कितना भी दो कम ही पड़ने वाला है, कितना भी दो कम पड़ने वाला है. Okay, so for that they've said कि कितना भी दे सकते हो तो फिर दिए जाओ. So contribution to National Defence Fund is done by board of directors. They can contribute at the amount as they think fit. There is no limit. तो हमने बोला so this is without limit. ठीक है, तो हमने बोला चलो एक काम करते हैं, हम क्यों ना हम एक लिमिट फिक्स कर लें, AOA से, प्रोविजन से, महुआ एक्ट से कुछ कर दें लिमिट. उन्होंने कहा नथिंग कैन इम्पोज अ लिमिट. मैंने कहा अच्छा ओके. और अगर हम कंट्रीब्यूट करें उसके बाद व्हाट इज द रूल्स, जैसे कुछ नहीं, यू हैव टू गिव अ डिस्क्लोजर इन P&L अकाउंट. इसका क्रक्स ये है, इसका क्रक्स ये है और इसका क्रक्स ये है. मेक सेंस? ठीक है, दिस इज 183. अब आते हैं 184 पे. 184 इज डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर. ये तुमने कहीं तो सुन रखा है, डिस्क्लोजर ऑफ इंटरेस्ट बाय डायरेक्टर. याद है हम जब 174 कर रहे थे, डायरेक्टर हैज टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट, फिर इफेक्टिव होएगा, ही विल नॉट पार्टिसिपेट. अब ये चार्ट देखो तुम्हें समझ में आएगा. रूल ये है, डायरेक्टर इफ ही इज इंटरेस्टेड ही हैज़ टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट. ठीक है, एंड नॉट जस्ट इंटरेस्ट, दिस पर्सन हैज़ टू डिस्क्लोज इंटरेस्ट एंड नेचर ऑफ इंटरेस्ट. मतलब इंटरेस्टेड हूँ इज़ अ फैक्ट, बट कैसे इंटरेस्टेड हूँ इज़ नेचर ऑफ फैक्ट. लाइक मेरा रिलेशन है, मेरे पास वोटिंग पावर है, क्या है नेचर ऑफ इंटरेस्ट. उससे होगा क्या, उससे ही विल डिस्क्लोज दिस एट अ बोर्ड मीटिंग एंड देन ही विल नॉट बी अलाउड टू पार्टिसिपेट एट द मीटिंग. पार्टिसिपेट नहीं करना मतलब not to participate means no voting, no discussion, not to be counted in quorum. अब 184 की ना कुछ बातें हम पहले करके आ चुके हैं. दैट सबसे पहले हमने कोरम में पढ़ा था कि IFSC जो है ना, उनके केस में डिस्क्लोजर के बाद पार्टिसिपेट कर सकते हैं. ठीक है, सो इफ यू अंडरस्टैंड, एज वेल एज प्राइवेट के केस में भी यही था. नाउ लुक ओवर योर वेरी केयरफुली हाँ प्लीज. दिस मीन्स ये वाला जो पार्ट है डिस्क्लोजर वाला, ये वाला पार्ट, दिस अप्लाइज टू ऑल द कंपनीज. ठीक है, वेर एज दीज विल अप्लाई this whole thing. If it is supposed to apply, it will apply only to a public company excluding IFSC. Yes, so can I say this all companies जो हमने लिखा था हम इसे भी बदल सकते हैं. The whole thing applies only to a public company, whereas this thing, this first part applies to private
एज वेल एज IFSC, बस इतना ही लगता है कि उनको सिर्फ डिस्क्लोज करना है. मेक सेंस? पूरी चीज़ तो सिर्फ पब्लिक कंपनीज को करनी है. मतलब प्राइवेट कंपनीज में डिस्क्लोज करके पार्टिसिपेट किया चलेगा, चलेगा. पब्लिक कंपनी में डिस्क्लोज करके पार्टिसिपेट किया चलेगा, नहीं चलेगा. बट अगर वो पब्लिक कंपनी IFSC हुई तो चलेगा. ये हम डिस्कस कर चुके हैं. फिर लाइक कितना फटाफट बोल दिया. 174 में मैं डिस्कस करके आई थी. ठीक है, नेक्स्ट. सो टॉकिंग अबाउट इंटरेस्ट क्या होता है. आई नो इफ आई एम इंटरेस्टेड आई एम सपोज टू डिस्क्लोज. इंटरेस्ट है क्या चीज़? अब लुक एट दिस चार्ट वेरी केयरफुली. जब कंपनी इज एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट, ठीक है, विथ, अच्छा किसके साथ एंटर कर रही है, और इस कंपनी की ना मैं डायरेक्टर हूँ गाइस, ठीक है, और मेरी कंपनी एंटर कर रही है इनटू अग्रीमेंट विथ या तो अदर बॉडी कॉर्पोरेट या फिर विथ फर्म AOP. फर्म AOP BOI को बाद में देखेंगे. अदर बॉडी कॉर्पोरेट, एंड इस अदर बॉडी कॉर्पोरेट में या तो मेरे पास वोटिंग पावर है या फिर मेरे पास पोस्ट है. यहाँ मैं डायरेक्टर थी, माई कंपनी, एंड इन द अदर कंपनी ईदर वोटिंग पावर और पोस्ट, देन आई एम कंसिडर्ड टू बी इंटरेस्ट. और फिर मेरे को डिस्क्लोज करना पड़ेगा, फिर आई विल नॉट पार्टिसिपेट. इज दिस ओके? वोटिंग पावर कितना, ये एक थोड़ा सा अलग है. अगर तुम्हें 149 याद है, वहाँ होता था 2% और मोर, यहाँ होता है मोर देन 2. फर्स्ट चीज, ठीक है. सेकेंडली, वहाँ होता था ही हिमसेल्फ विद हिज रिलेटिव्स, यहाँ होता है ही अलॉन्ग विद अदर डायरेक्टर्स. ये ट्विस्ट है, ठीक है. या फिर उसके पास पोस्ट हो. इट्स लाइक पोस्ट मतलब कौन सा पोस्ट? पोस्ट इज या तो ही इज अ प्रमोटर. सी द डायरेक्टर इज, डायरेक्टर मतलब कंपनी का, यहाँ पे डायरेक्टर नहीं होता है वो, यहाँ वो प्रमोटर हो, मैनेजर हो, CEO हो ऑफ दैट अदर बॉडी कॉर्पोरेट. याद रखना, यहाँ डायरेक्टर हुआ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हाँ मैनेजिंग डायरेक्टर हुआ तो प्रॉब्लम है. मैनेजर मैनेजिंग डायरेक्टर दोनों आ जाता है ना. इज दिस ओके? देन ही हैव टू डिस्क्लोज हिज इंटरेस्ट. इज दिस मेकिंग सेंस? ओके, नेक्स्ट. फर्म AOP BOI डायरेक्टर. अगर हमारी कंपनी इज एंटरिंग इनटू अग्रीमेंट विथ फर्म AOP BOI एंड उस फर्म AOP BOI में हमारा डायरेक्टर इज पार्टनर, ओनर या मेंबर. ओह आई एम सॉरी, पार्टनर, ओनर और मेंबर. दिख रहा है? तो इधर पहले ना वो गायब ही हो गया था. पार्टनर, ओनर या मेंबर हुआ तो फिर यू आर अलाउड टू, लाइक यू हैव टू डिस्क्लोज योर इंटरेस्ट एंड देन यू विल हैव टू नॉट पार्टिसिपेट. लेकिन अगर प्राइवेट कंपनी तो अलाउड होगा. ये इंटरेस्ट का डेफिनेशन है, ठीक है. नेक्स्ट, सब्सिक्वेंट अराइजल ऑफ इंटरेस्ट. अब ये क्या चीज़ है? अगर आज जब ट्रांजैक्शन हो रहा था तब मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था, बाद में इंटरेस्ट जागा तो कोई बात नहीं, बाद में डिस्क्लोज करो, बट ट्रांजैक्शन हैज टू बी गोइंग ऑन. तो अगर साल भर का कॉन्ट्रैक्ट था विद द सप्लायर एंड इनिशियली आई वाज नॉट इंटरेस्टेड, कोई बात नहीं, लेटर ऑन यू गॉट इंटरेस्टेड, कॉन्ट्रैक्ट अभी चालू है, जो नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उस पर डिस्क्लोज करो, ठीक है. सो ही मस्ट डिस्क्लोज हिज कंसर्न एट द फर्स्ट मीटिंग हेल्ड आफ्टर ही बिकम्स सो इंटरेस्टेड. कॉन्ट्रवेंशन हुआ तो क्या होगा? अब से याद रखना, कॉन्ट्रवेंशन होगा ना तो हम कॉन्ट्रैक्ट का भी सोचेंगे और पेनल्टी का भी, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट भी वी विल थिंक एंड पेनल्टी ऑल्सो वी विल थिंक. पेनल्टी तो अब सेकेंडरी हो गया. पहले तो तुम सोचो ना, इंटरेस्टेड डायरेक्टर ने जोल जाल करके कॉन्ट्रैक्ट करा दिया है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का क्या करें? कॉन्ट्रैक्ट तो वॉइडेबल है क्योंकि किसी ने हमारे साथ चीटिंग की है, तो हम पूछ लेंगे कि ऐसे ऐसे चीटिंग हुई है, इज इट ओके विद यू? आई मीन यू नेवर नो ना, कल को वो बोले ओ उसने कुछ छुपाया था क्या, बट अगर वो बता भी देता तो भी हम तो यही डिसीजन लेते, तो फिर हम फंस जाएंगे. ओके, इसीलिए जैसे कि वॉइडेबल, उनसे पूछ लो, ठीक है. एंड पेनल्टी क्या होगी? कंपनी पे ना देयर इज नो पेनल्टी इन दिस. OID पे है इम्प्रिजनमेंट अप टू 1 year, फाइन अप टू 1 lakh और बोथ. बट दैट इज नॉट इट. और कुछ बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, प्लस 167. याद आया? 167 वो एक चार्ट था बहुत सारी चीज़ों वाला. उस चार्ट में से एक था अगर 184 कॉन्ट्रीब्यूट किया तो आप 167 में वेकेशन करोगे, हम 184 पे. ये लिंक करना आपको सीखना है. इज दिस ओके? तो वेकेशन ऑफ ऑफिस भी हो जाएगा उसका, ठीक है. नेक्स्ट, मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट लोन टू डायरेक्टर. ये भी मस्त सेक्शन है, बहुत मजा आएगा आपको, तो ध्यान से समझना. और ये बहुत सारा अमेंड हो गया. सो व्हेन यू विल सी एनी बुक दे विल बी लाइक ओह अमेंड हुआ, अमेंड हुआ, अमेंड हुआ. लेट अस अंडरस्टैंड ना, ऐसा क्या अमेंड हो गया इसमें? अमेंड ये हो गया, पहले रूल ये था डायरेक्टर को लोन या डायरेक्टर की किसी भी जान पहचान वाले को लोन देना अलाउड ही नहीं था, ठीक है. चाहे और किसी कंपनी को भी नहीं दे सकते थे जिसमें डायरेक्टर इंटरेस्टेड था, तो घुमा फिरा के किसी भी डायरेक्टर को लोन नहीं मिल सकता था. दिस वॉज द रूल, ओके. बट अब अगर मुझे डायरेक्टर को लोन देना है, सो देव साइड रुक जा. अगर इंडिविजुअल को दे रहे हो तो नॉट अलाउड, बट अगर कंपनी को दे रहे हो तो वो सेपरेट लीगल एंटिटी भी तो है, तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई करके दे सकते हो. दिस इज द ओनली अमेंडमेंट गाइस.
इतना 185 का अमेंडमेंट ऐसे, क्योंकि इफ यू सी एमसीए का वेबसाइट होता है ना, द होल 185 इज इन न्यू कलर मतलब अमेंडेड. बट आई टेल यू वाई. सबसेक्शन 1 जो था ना उसको तोड़ के बनाए 2, सो अब 1 और 2 हो गया. तो जो 2 था वो 3 हो गया, 3 था वो 4 हो गया, 4 था वो 5 हो गया. तो ना सोच हो कितने सारे अमेंडमेंट आ गए. कोई अमेंडमेंट नहीं आया, सबसेक्शन का नंबर भी बदलेगा तो उसको अमेंडमेंट बोलना पड़ता है. बदला सिर्फ सबसेक्शन 1 और 2 है, वो ध्यान से समझ लेना. ठीक है ना. लोन टू डायरेक्टर, सबसे पहले लोन टू डायरेक्टर होता क्या है. सी दिस. कंपनी गिविंग लोन टू डायरेक्टर. ओप्सी, I by default like the red color, but it makes everything too dark. Company is giving loan to a director. I'm sorry. Company is giving loan to a director. ठीक है. एंड ये लोन डायरेक्टली दिया, नॉट अलाउड. तो हमने कहा अच्छा ओके, डायरेक्टली लोन देंगे तो 185 मना करता है. उन्होंने कहा हाँ मना करता है. तो मैंने कहा रुक, घुमा के देते हैं. हमने एक थर्ड पार्टी ढूंढी, उसको बोला तू हमारे डायरेक्टर को लोन देना. थर्ड पार्टी बोली मैं क्यों दूँ, गारंटी कौन देगा. हमने कहा अरे हम बैठे तो हैं, गारंटी हम देंगे. सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस इज इनडायरेक्ट लोन ना. अगर ये गारंटी नहीं होती, ये लोन नहीं होता. तो उन्होंने कहा ये भी नॉट अलाउड. किसको नहीं दे सकते, इन 4 लोगों को. डायरेक्टर को, डायरेक्टर के रिलेटिव को, डायरेक्टर के पार्टनर को, या ऐसी फर्म जिसमें डायरेक्टर है उसका रिलेटिव पार्टनर. इनको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोन नहीं दे सकते. सो इफ यू सी दिस, नो कंपनी शैल गिव डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनी लोन और गारंटी फॉर अ लोन टेकन बाय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी और होल्डिंग पार्टनर, रिलेटिव या एनी फर्म इन विच डायरेक्टर और पार्टनर इज द पार्टनर. डायरेक्टर और रिलेटिव इज द पार्टनर. मेक सेंस. ठीक है, ये पहला पॉइंट हुआ. अब दूसरा सुनो. दूसरा में हम ये बोलते हैं कि सबको नहीं, सिर्फ कंपनी को नहीं देना. मतलब सी दिस, कंपनी इज गिविंग लोन टू अदर कॉर्पोरेट. ठीक है. नॉर्मली अगर ये होता ना, ये 185 का क्वेश्चन ही नहीं है, ये 186 का है. बट प्रॉब्लम क्या है पता है. प्रॉब्लम ये है, इस कंपनी का जो डायरेक्टर है ना, वो इस कॉर्पोरेट में, या तो इफ दिस इज अ प्राइवेट कंपनी, तो इस कॉर्पोरेट में दैट पर्सन इज अ डायरेक्टर और मेंबर, ये वाला बंदा. ठीक है, तो फिर 185 अट्रैक्ट होगा, वरना ये 186 हो जाता. लेकिन इफ दिस कॉर्पोरेट इज अ पब्लिक कंपनी, तो इस डायरेक्टर का इस पब्लिक कंपनी में 25% कैपिटल है, वोटिंग पावर. अगर ये दोनों में से कोई भी एक चीज हुई तो फिर आप डायरेक्टली लोन दे रहे हो. आप डायरेक्टली लोन दे रहे हो 2 कंडीशंस के बिना, नॉट अलाउड. पहले ये क्लियरली नॉट अलाउड था. या फिर आप लोन दिलवा रहे हो और आप गारंटी दे रहे हो, उसके लिए भी 2 कंडीशन सेटिस्फाई करोगे तो ही अलाउड है. ठीक है. 2 कंडीशंस में से पहली कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन इज दैट दिस लोन शुड बी यूटिलाइज्ड फॉर कंपनीज मेन बिजनेस. वो जो कॉर्पोरेट है ना, जो लोन ले रहा है, they should utilize it for the main purpose. And second condition is they will have to pass SR to take it, to give it. Make sense? 2 condition है. SR पास करो and it should be utilized for the main purpose. ऐसा लगना चाहिए कंपनी को दिया, ऐसा नहीं लगना चाहिए कंपनी को दिया, कंपनी ने उठा के डायरेक्टर को दे दिया, ये नहीं लगना चाहिए. ठीक है. सो इफ यू अंडरस्टूड दिस, लेट्स गो हेड. पहले ये सब कुछ एक में होता था, नॉट अलाउड. अब ये अलाउड है. 2 कंडीशन, SR एंड यूटिलाइजेशन. सो talking about this, company may advance any loan or give any guarantee for any loan taken by a person or director subject to the following conditions. Special resolution pass हो and loans are utilized for the main purpose. ठीक है. कौन नहीं ले सकता? Private company of which any such director is a director or member. Body corporate in a general meeting of which voting power is exercised by 2 or more such directors together, 25%. Body corporate, the board of directors, managing director, manager whereof is accustomed to act in as per the instructions of board. मतलब इसको बोलते हैं डीम्ड डायरेक्टर. मतलब वो वाली कंपनी का जो बोर्ड है ना, वो हमारे हिसाब से ही चलता है, तो वो एज गुड एज हमारी हुई ना. उसको लोन देंगे, घूम फिर के हमारे पास ही आ जाएगा. तो कहा नहीं दो, बट उसको बोलो अपने मेन पर्पस में यूज़ करे. तो ऐसा तो नहीं लगेगा कि आपको ही दिया. मेक सेंस. ठीक है. ये हुआ 185 का लोन टू डायरेक्टर का बेसिक रूल. ओके. इफ यू अंडरस्टैंड, देयर इज अ लॉट मोर कमिंग अप. 185 बहुत बड़ा सेक्शन है. ठीक है. सो सबसे पहले लोन टू डायरेक्टर देना है तो ये है. अगर आप लोन ऐसे ही दे रहे हो, व्हेन यू आर गिविंग लोन टू अ डायरेक्टर डायरेक्टली टू द इंडिविजुअल, तो फिर रूल सिर्फ इतना है कि यू कैन नॉट गिव. बट इफ यू वांट टू गिव दैट लोन स्पेसिफिकली टू अ कंपनी जिसमें डायरेक्टर भी इंटरेस्टेड है, तो यू कैन गिव दैट लोन सब्जेक्ट टू 1 पर्टिकुलर कंडीशन, दैट SR पास करो
और उसका यूटिलाइजेशन सही से हो। इज दिस ओके? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट 185 ही चल रहा है। इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू 185 इज नॉट एप्लीकेबल टू होम। इसके ना ऑनेस्टली 4 एक्सेप्शन है, मस्त है, बट हम 2 करके पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहला, इट इज़ नॉट एप्लीकेबल टू एनी लोन टू अ मैनेजिंग डायरेक्टर और होल टाइम डायरेक्टर। इस फर्स्ट केस में अगर आपने 2 कंडीशन सेटिस्फाई की, आप MD-WTD को लोन दे पाओगे। सेकेंड केस वाला अगर हुआ और आपने सेटिस्फाई की, तो आप किसी भी डायरेक्टर को लोन दे पाओगे। इज दिस ओके? किसी भी डायरेक्टर को लोन दे पाओगे अगर सेकेंड वाला केस हुआ तो। ठीक है ना, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग। Okay, so if 2 conditions are satisfied, a case में you can give loan to managing director और whole time director, and यहाँ पे भी if you want to give loan, तो the funda is उस side you can give to any director depending on your banking business। उसके conditions हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे 2 cumulative conditions आने वाले और यहाँ पे 2 individual conditions है, any one is to be satisfied। ठीक है, so let's go ahead and understand what it is। So सबसे पहले talking about MD-WTD। See, if a company has a system, you know there are so many companies which have system जिसमें वो अपने employees को लोन देते हैं, उनके सैलरी से काट लेते हैं। ठीक है, सो नाउ इफ़ देर इज़ अ सिस्टम जिसमें दे आर गिविंग लोन टू एम्प्लॉयज़, सब एम्प्लॉयज़ को अगर तुम लोन दे रहे हो, उसी सिस्टम में अगर तुम एक लोन अपने MD-WTD को भी दे दो, क्योंकि MD-WTD एट द एंड ऑफ द डे एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, MD-WTD एट द एंड ऑफ द डे एम्प्लॉयज़ भी हैं, सब एम्प्लॉयज़ को लोन देते हो, उसी में MD को भी दे दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है? तब तुम उसे डायरेक्टर मत कंसिडर करो ना, उसे एम्प्लॉय कंसिडर कर लो। सो दे सेड अच्छा ओके, सो देयर हैज़ टू बी इट द लोन शुड बी गिवन एज अ पार्ट ऑफ कंडीशन ऑफ सर्विस एक्सटेंडेड टू ऑल द एम्प्लॉयज़। या फिर नहीं है, हमारे पास ऐसा कोई स्कीम नहीं है जिसमें हम लोन दे सकते हैं, कोई बात नहीं, SR पास करो, स्कीम बनाओ। SR पास करके लोन मत दो, SR पास करके लोन देना अलाउड नहीं है, बट हाँ SR पास करके अगर तुम स्कीम बनाओगे ना तो वो अलाउड होगा। तो स्कीम बनाओ और स्कीम में लोन दो, सबका भला होगा। सो एनी वन ऑफ दीज इज टू बी सेटिस्फाइड। इफ यू कैन सी दिस, देयर इज और ओवर। इज दिस ओके? एनी वन इज टू बी सेटिस्फाइड। अब आगे बढ़ते हैं। टॉकिंग अबाउट दिस साइड, देयर आर 2 कंडीशंस, यहाँ पे दोनों सेटिस्फाई होनी है। ठीक है, सबसे पहले ये बैंकिंग बिजनेस। फिर अंडरस्टैंड, तुम पूरी दुनिया को लोन दे रहे हो यार, और तुम्हारा डायरेक्टर लोन मांगने बाहर जाएगा। हाउ डज इट साउंड? SBI का डायरेक्टर ICICI से लोन मांग रहा है, ICICI का PNB से लोन मांग, क्या चल क्या रहा है? सबको दे सकते, इनको नहीं दे सकते? वैसे ही दे दो जैसे सबको देते हो। सो देयर आर 2 कंडीशंस, यू शुड बी गिविंग इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ठीक है, एंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड नॉट बी लेस देन RBI रेट। इट कैन बी इक्वल टू RBI रेट, दैट इज प्रिवेलिंग यील्ड के हिसाब से कैलकुलेट होगा इसमें, बट इट कैन बी इक्वल टू दैट। क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है, अपना बहुत अच्छा क्लाइंट हो तो हम एक बार प्रॉफिट नहीं कमाते जस्ट टू रिटेन द क्लाइंट, तो हम उसको RBI रेट पे दे भी देते हैं, उससे कम तो किसी को नहीं देते ना, तो डोंट इवन गिव टू दिस डायरेक्टर। ओके, ये 2 कंडीशन अगर प्लीज याद रखना गाइस, ऑर्डिनरी कोर्स इज नॉट ALP। हाँ, ऑर्डिनरी कोर्स इज द एक्टिविटी। सो ऑर्डिनरी कोर्स मीन्स एक्टिविटी, एंड प्राइस के लिए नीचे अलग रेट का कंडीशन है। ओके, अगर तो नॉर्मली होम लोन नहीं देते तो अपने डायरेक्टर को भी नहीं दोगे, वैसा वाला फंड है। सो ऑर्डिनरी कोर्स एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट तो फिर तुम दे दो, बिकॉज यू डिडंट कंसिडर, इफ यू अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर थिंग, यहाँ पे ना यू कंसिडर्ड हिम एज एम्प्लॉय। आई डोंट थिंक यू कैन सी इट, आई विल चेंज द कलर। यहाँ पे यू कंसिडर्ड हिम एज एम्प्लॉय एंड यहाँ पे यू कंसिडर्ड हिम एज अ कस्टमर, तो उसको डायरेक्टर तो कहीं माना ही नहीं। ओके, मूविंग अहेड विद द नेक्स्ट थिंग। अब जो बचे हुए 2 कंडीशंस हैं, मतलब 2 और एक्सेप्शंस थे। वन इज होल्डिंग एंड होली ओन सब्सिडरी। होली ओन सब्सिडरी मतलब ये जो था ना, लोन दे रहे हैं हम, गारंटी रहे, नॉर्मली पता है किसी कंपनी को देना हो तो 2 कंडीशंस होती हैं, बट तुम सोचो ना यार, तुम्हें पता है ये कंपनी कौन है, चाहे यहाँ का डायरेक्टर यहाँ पे डायरेक्टर हो या उसके पास वोटिंग पावर तो हो नहीं सकता बिकॉज होली ओन सब्सिडरी है। इफ यहाँ का डायरेक्टर यहाँ पे डायरेक्टर भी है तो भी बड़ा रिश्ता क्या है, डायरेक्टर का या होली ओन सब्सिडरी का? होली ओन सब्सिडरी यार, उनके लिए मतलब होल्डिंग ने होली ओन सब्सिडरी को पैसे दिए, इसलिए एक पॉकेट से निकाल के दूसरे में डाल दिए। हाउ डज इट मैटर? तो उसमें वो लोग देंगे, डोंट गेट इनटू हो तुम्हारा डायरेक्टर कॉमेंट, डायरेक्टर इतना बड़ा रिलेशन है ही नहीं जितना बड़ा होली ओन सब्सिडरी है। सो फॉर दैट इट इज अलाउड, यू कैन डायरेक्टली गिव लोन टू योर होली ओन सब्सिडरी और यू कैन गिव इनडायरेक्टली, एवरीथिंग इज अलाउड। नो सेक्शन एक्सेप्ट 188 ट्राइज टू प्ले विद होली ओन सब्सिडरी, सब जगह एग्जेम्पशन है। ठीक है, टॉकिंग अबाउट नेक्स्ट वन, सो योर एवरीथिंग इज अलाउड, क्योंकि आई मेक माई स्टूडेंट्स रिमेंबर दिस वे, होली ओन सब्सिडरी है यार, ये पूरी की पूरी तुम्हारी है, जो मर्जी करो। ठीक है, वेराज ऑन दी अदर हैंड टॉकिंग अबाउट सब्सिडरी, ये सब्सिडरी है बट ये होली ओन नहीं है, ये तुम्हारी है बट ये पूरी तुम्हारी नहीं, इसका जो मर्जी नहीं कर सकते तुम। ठीक है, सो इफ अंडरस्टैंड, यहाँ डायरेक्ट लोन नहीं अलाउड है। ठीक है, वेराज इनडायरेक्ट लोन अलाउड है। तो इफ यू सी दिस इज नॉट अलाउड, यू कैन गिव गारंटी फॉर द लोन्स। तो वो जो 2 कंडीशन थी कि SR पास करो, उसमें से SR नहीं होगा। आई टेल यू व्हाई, बिकॉज यहाँ पे इनडायरेक्ट लोन अलाउड, डायरेक्ट नॉट अलाउड।
बस एक कंडीशन है दोनों में, यूटिलाइज्ड फॉर द प्रिंसिपल एक्टिविटी. सो इफ यू अंडरस्टैंड, वो एक कंडीशन तो है ही, यहाँ पे एसआर से एग्जाम्प्ट हो, सब करने में यहाँ इनडायरेक्ट में एसआर से एग्जाम्प्ट हो, डायरेक्ट करना है तो एसआर पास करना पड़ेगा. इज दिस ओके? ये हुए आपके चारों एक्सेप्शंस टू 185. मेक सेंस? मूविंग अहेड, 185 अगर आपने कॉन्ट्रवीन किया, 185 अगर आपने कॉन्ट्रवीन किया तो कॉन्ट्रवेंशन का इफेक्ट क्या है? कॉन्ट्रवेंशन का इफेक्ट ये है दैट कंपनी विल बी पनिशेबल फ्रॉम 5 लाख टू 25 लाख, ऑफिसर will be punishable 5 lakh to 25 lakh, and there is 6 months ka imprisonment also. You will get one of those. There's no both. Okay, and director or the person to whom loan, the person who's taken loan will also have imprisonment up to 6 months or 5 lakh to 25 lakh or both. Please ये चीज़ याद रखना कहाँ both है कहाँ नहीं, because if you're making a list of penalties, trust me it will become very difficult because everything is studying together. फिर तो एक भी याद नहीं होगी. यहाँ पे both नहीं है, यहाँ पे both है. मेक सेंस? ठीक है. मूविंग अहेड, टॉकिंग अबाउट 186. मस्त सेक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है. 186 इज इंटर कॉर्पोरेट लोन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय इंटर कॉर्पोरेट लोन? मतलब एप्लीकेबिलिटी, व्हाट एग्जैक्टली इज इंटर कॉर्पोरेट लोन? इंटर कॉर्पोरेट लोन इज व्हेन एक कंपनी है, देयर इज अ कंपनी, ठीक है, विच इज गिविंग लोन टू अदर बॉडी कॉर्पोरेट. दिस इज कॉल्ड इंटर कॉर्पोरेट लोन. या फिर they purchase acquire shares or securities of other body corporate. This is called intercorporate investment. या फिर अदर पर्सन को बोला तू लोन दे हम गारंटी देंगे. दिस इज नॉट इंटरकॉर्पोरेट गारंटी. दिस इज कॉल्ड इंटरकॉर्पोरेट लोन ओनली ना, इनडायरेक्ट वाला जो अभी डायरेक्टर्स में पढ़ा था, लोन टू डायरेक्टर में. हाँ, लेकिन अगर तुम इसको बोलो कि अदर पर्सन ओबीसी तू अदर पर्सन को लोन दे हम तेरे को गारंटी देंगे, दिस इज इंटरकॉर्पोरेट गारंटी. इन सब में ये सेक्शन अट्रैक्ट होगा. ओके, सो applicability, this section applies to both public as well as private company. There are 3 types of transactions. पहला is loan, guarantee and investment. ठीक है, इन तीनों में ये अप्लाई होगा. नाउ करना क्या पड़ेगा, इसकी ना 5 cumulative requirements है which will come on the next slide. वही सबसे इंपॉर्टेंट है जो याद रखना है. ठीक है, there are 5 cumulative requirements. उसके सिवाय there are exemptions. इन केसेस में कुछ नहीं करना पड़ता, as good as nothing happened. That is when you subscribe to right issue. Though it is considered as investment, but वो exempt है when you subscribe to right issue. Second is special purpose company, which we remember as BIFA. BIFA, banking, insurance, infrastructure finance, housing finance, and companies whose main business is acquisition of shares in stock. Investment company. ठीक है, so banking, insurance, infrastructure finance, housing finance, and acquisition of shares in stock. And lastly, वो रिश्ता जिसको कोई नहीं छेड़ता, holding and wholly owned subsidiary. Is this okay? ठीक है, तो होल्डिंग एंड होली ओन सब्सिडी के बीच में कोई भी रिलेशन हो, उसको तो वैसे भी 188 रखा ही है हमने उसके लिए, बाकी कोई सेक्शन छेड़ना नहीं. तो वो अगर वो करेंगे तो उसके लिए ये पूरे अप्रूवल्स नहीं होंगे. ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड देयर आर 5 क्यूमुलेटिव कंडीशंस. दिस इज द ओनली थिंग रिमेनिंग. ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट दोस 5 क्यूमुलेटिव कंडीशंस, एक एक करके. 5 रिक्वायरमेंट्स. सबसे पहला वाला इज अप्रूवल ऑफ बोर्ड. दूसरा इज अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर्स, दैट इज मेंबर्स. तीसरा इज अप्रूवल ऑफ वो जिनके रेमो करम पे हम जिंदा हैं, अप्रूवल ऑफ पीएफआई. नेक्स्ट, देयर इज नो अप्रूवल. नाउ देयर आर 3 अप्रूवल्स, देयर आर 2 मोर कंडीशंस. ओके, नेक्स्ट इज डिफॉल्ट एंड डिपॉजिट्स. अगर डिफॉल्ट हुआ ना तो इंटरकॉर्पोरेट लोन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं है जब तक डिफॉल्ट इज नॉट मेड गुड. एंड लास्टली, रेट ऑफ इंटरेस्ट. यू आर अलाउड टू गिव इंटरकॉर्पोरेट लोन, दैट डज नॉट मीन यू कैन स्टार्ट कंपीटिंग विद बैंक्स. आरबीआई रेट के नीचे आप नहीं दे सकते. इज दिस ओके? दीज आर द कंडीशन. सो लेट्स टॉक अबाउट वन एट अ टाइम. सबसे पहले अप्रूवल ऑफ बोर्ड. रिमेंबर यहाँ पे ना 6 पॉइंट्स आएंगे गाइस, और यहाँ पे भी 6 आएंगे. पर्पसली हम ये 6 से पढ़ेंगे कि इसके कंपैरिजन में यहाँ पे फिर नेक्स्ट 6 आएंगे. सो देन वंस यू रिमेंबर दिस यू विल बी एबल टू राइट दीज ऑल्सो. ओके, सो जस्ट टॉकिंग अबाउट इट. सबसे पहले बोर्ड से पूछे में ना कुछ नहीं होता. इफ यू नो कंपनी इज आर्टिफिशियल, कंपनी की हर चीज़ बोर्ड करने वाली है या तो शेयर होल्डर्स करेंगे. सो योर बोर्ड अप्रूवल इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम एंड फॉर एनी अमाउंट. ओके, सो एवरी टाइम एंड फॉर एनी अमाउंट. नेक्स्ट, व्हेन यू सेइंग अप्रूवल, तो पहले लोगे बाद में लोगे, पहले लोगे. सो इट हैज़ टू बी प्रायर अप्रूवल. विच रेजोल्यूशन? यूनानिमस रेजोल्यूशन. देयर इज यूनानिमस रेजोल्यूशन हियर. ओके, नेक्स्ट, वेयर? ओनली एट अ बोर्ड मीटिंग, मतलब आरबीसी नहीं चलेगा. ओके, नेक्स्ट, देयर इज नो डेलीगेशन अलाउड. जबकि अगर तुम्हें याद हो बीएलआईजी, अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, उसमें डेलीगेशन अलाउड होता है. अगर तुम देखो बीएलआईजी में से एलआईजी यहाँ पे है, लोन इन्वेस्टमेंट गारंटी, बट यू कैन डेलीगेट इफ यू आर डूइंग इट थ्रू फॉर द कंपनी. So it is clearly given delegation under 179 should not result in contravention of 186. मतलब आप डेलीगेट करो
जब तक लोन इज बीइंग गिवन टू एनी अदर टाइप ऑफ एसोसिएशन, तो जिसको डेलीगेट किया ही कैन डू इट, बट द मोमेंट यू गिविंग लोन टू अदर कॉर्पोरेट, तब यू विल हैव टू फॉलो 186 एंड डू इट ओनली एट अ बोर्ड मीटिंग. RBC delegation, nothing allowed. Is this okay? Next is there is no special notice required. Okay, no special notice required. Generally जब हम SRB पास करते हैं तो you have to give special notice, ठीक है. बट यहाँ पे UR है, बट स्पेशल नोटिस इज एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट है, एजेंडा का डिटेल्स, ठीक है. इफ़ यू अंडरस्टैंड, जिस बोर्ड मीटिंग में तो एजेंडा भी नहीं होता, डिटेल्स कहाँ से हो गया, ठीक है. सो एजेंडा इज नॉट कंपल्सरी, तो स्पेशल नोटिस तो उसका एक्सप्लेनेशन है, यू डोंट नीड इट. सो स्पेशल नोटिस इज नॉट रिक्वायर्ड. ये लॉ में नहीं लिखा है, बट ये ICAI 2-3 बार पूछ चुका है कि UR पास किया बिना स्पेशल नोटिस चलेगा क्या, एंड स्टूडेंट्स चले करें हाँ रे, SR में इफ हैव टू टेक स्पेशल नोटिस तो UR में तो बनता होगा, नहीं चाहिए. बोर्ड मीटिंग में कोई एजेंडा नहीं चाहिए, स्पेशल नोटिस कहाँ से आया. इज दिस ओके. ना यही 6 पॉइंट्स विल कंपेयर एंड स्टडी मेंबर्स, ठीक है. सो यहाँ पे इट वॉज एवरी टाइम एंड एनी अमाउंट, यहाँ पे इट वॉज एवरी टाइम एनी अमाउंट. यहाँ पे इट इज ओनली व्हेन लिमिट इज एक्सीडेड. देयर इज लिमिट अंडर 186, अगर वो एक्सीड होगी ना तो ही लिमिट, वील स्टडी दैट लेटर, बट फॉर नाउ it is only when already made intercorporate loan investment guarantee security already made plus proposed to be made exceeds that particular limit, तो ही you have to take approval, ठीक है. सेकेंड, यहाँ पे it was prior approval तो prior ही होगा ना वहाँ पे भी. okay, this was unanimous resolution, these will pass SR. this they were doing at board meeting, this they'll do at GM. here there is no delegation. now shareholders any which ways don't delegate, right. shareholders के पास दूसरा शॉर्टकट है, blanket approval, ठीक है. तो यहाँ पे ब्लैंकेट अप्रूवल नहीं चलता, यू हैव टू पास इंडिविजुअल रेजोल्यूशंस टू अप्रूव एवरी ट्रांजैक्शन. ओके, नेक्स्ट, स्पेशल नोटिस नॉट रिक्वायर्ड. ईयर ऑब्वियसली शेयर होल्डर्स में तो रिक्वायर्ड होगा, मेक सेंस, ठीक है. अब यहाँ का जो लिमिट है वो लिमिट ध्यान से सुन लेना, बिकॉज दैट लिमिट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इट इज 60% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व्स और 100% ऑफ फ्री रिजर्व्स whichever is higher. till this limit आप खुद से कर सकते हो, बोर्ड कैन डू इट विदाउट आस्किंग शेयर होल्डर्स, उसके बाद शेयर होल्डर्स से पूछना पड़ेगा. मेक सेंस, ठीक है. अब बढ़ते हैं PFI के अप्रूवल के. इवन PFI अप्रूवल इज प्रायर एंड नॉर्मली जस्ट रिमेंबर दैट वे इट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड एक्सेप्ट इन सर्टन केसेस, ठीक है. 2 कंडीशंस हैं जो अगर सेटिस्फाई हुई तो यू विल नॉट रिक्वायर. now just remember, depending on which author you're studying, you can have these 2 conditions as and or डजेंट मैटर. फिर लाइक कहीं और लिखा है, कहीं एंड लिखा है, एक पॉजिटिव सेंस में लिखा होगा, एक नेगेटिव सेंस में लिखा होगा, क्योंकि ICAI भी अपने कुछ क्वेश्चंस में और लिखती है, कुछ में एंड लिखती है. सो देन यू शुडंट गेट कंफ्यूज्ड, अंडरस्टैंड इट दिस वे. दे से नॉर्मली यू आर रिक्वायर्ड अप्रूवल, बट इफ देर इज नो डिफॉल्ट इन PFI एंड द लिमिट अंडर 186, दिस लिमिट इज नॉट एक्सीडेड, देन यू डोंट रिक्वायर अप्रूवल. अभी आई सेड एंड, okay, so if there is no default and the limit is not exceeded, you don't require approval. So it automatically means if there is default or limit is exceeded, you will require approval. Make sense? So approval required only if limit exceeded or there is default. Make sense? Okay, next, default and deposits. I told you, if the default subsist, then you can't do it into corporate loans, but if it is made good later, then you will be allowed. रेट ऑफ इंटरेस्ट, बैंक से compete नहीं करने लग जाना, RBI रेट से नीचे आप दे नहीं सकते. ओके, RBI रेट से नीचे आप दे ही नहीं सकते. मेक सेंस. नाउ मूविंग अहेड, 186 खत्म हुआ. टॉकिंग अबाउट 187, विच इज इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द कंपनी टू बी हेल्ड इन कंपनीज ओनली. ओके, नाउ व्हाट एग्जैक्टली इज दिस. सी, इन्वेस्टमेंट्स ऑफ द कंपनी टू बी हेल्ड इन कंपनीज ओन नेम. फंडा बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, जस्ट अंडरस्टैंड इट केयरफुली. सी, all that we are trying to say is, अगर कंपनी ने इन्वेस्टमेंट्स खरीदे हैं, so when company is eligible to have legal suits in its name, it can hold assets, it can hold investments also. so they've पहले ना this used to be in कारो. अगर तुमने कारो 2003 का भी पढ़ा हो ना, उसमें रूल था कि कंपनी के assets इन्वेस्टमेंट्स उसके खुद के नाम पे होने चाहिए, which later on when the act came, they incorporated in the act that the investments of the company should be held in company's own name. इसके ना 5 exceptions हैं. Only in these 5 particular cases, company can have its investment held in somebody else's name, otherwise not allowed. Is this okay? तो अब ध्यान से सुनना. All investments should be held in company's own name. But the company may hold any shares in subsidiary company in the name of nominee if it is necessary to ensure minimum limit. I'll just tell you. For example, let's say there is A Limited and इसकी ना wholly owned subsidiary है B Limited. Wholly owned subsidiary मतलब
100% शेयर्स आर हेल्ड बाय होल्डिंग, ठीक है. अगर 100% शेयर्स ए के पास हैं और अगर ए अपने सारे शेयर्स अपने नाम पे रखेगी, सो इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स फॉर बी लिमिटेड देयर विल बी ओनली 1 member, whereas B Limited being a public company requires minimum 7 members, and if it keeps 1 member it will become an illegal association. समझा? The whole problem happened because of 187. 187 came up saying सब shares अपने नाम पे रखो, तो minimum members नहीं satisfy होता, and if I go satisfying minimum members तो wholly owned subsidiary का concept नहीं बैठता. So they said नहीं सुनो. In case of your subsidiary, this is your subsidiary, ठीक है, holding company is allowed to appoint nominee members. So now what they can do is, एक तो वो खुद हैं, they can appoint 6 nominee members जिनके नाम पे एक शेयर ट्रांसफर होगा सिर्फ, एंड उनके नाम के आगे नॉमिनी लिखा जाएगा, सो दैट दे डोंट सेल इट ऑफ टुमारो, एंड इसके मिनिमम 7 members करना अलाउड होगा. मेक सेंस? नाउ इफ यू रीड दिस, द कंपनी may hold shares in its subsidiary in name of any nominees if it is necessary to ensure the minimum number of members. ठीक है. So moving ahead, next 5, now 4 more cases. 5 exception थे, एक था सब्सिडरी वाला, अब 4 बचे. तो these are the 4 exceptions, which is सबसे पहले depositing with the bank for collection of dividend. If you know अगर physical firm के shares है, there is dividend warrant also, you might have to personally go collecting your dividend. So in that, see, if it is your demat firm के shares, everything is coming in your account. Demat is the last exception to this, तो उस पर बाद में आएंगे. Currently if you have to, you will outsource your dividend collection का काम to a bank. So bank needs shares in its name to get dividend in its account. फिर वो अपना commission काट के आपको dividend देगी. So temporarily for collection of dividend you are transferring your shares in your bank's name, but that's allowed. So for collection of dividend it is allowed. For sale it is allowed. If you want to sell the shares, you find the buyer, and then there has to be like physical form के shares तो properly sale deed से sell होंगे. It can't be like the normal demat form के shares. You have to enter into a sale deed, notary, सब कुछ होना चाहिए. And then finding a buyer and then matching the times, not possible. To outsource it. Tell a bank you find the buyer and you sell it. But how can bank sell it, na? So you'll have to transfer it in the bank's name for some time. Maximum 6 months over here. Okay? For 6 months you can transfer in bank's name. That is allowed. For the purpose of sale. But 6 months में नहीं बिके तो वापस लाने पड़ेंगे. Is this okay? Next one is giving it as a security. See, if I give loan to people, if I have money, okay, and I invest it into investments, I create investments out of it. वो investments mature होंगे 3 साल बाद, तो 3 साल के तो blocked funds हो गए वो. I know I'm getting interest, but और कुछ नहीं कर सकते क्या? I can always give it as a security. And if I give it as a security, mortgage and pledges of many types, guys. ठीक है, तुम इतने टाइप तुम्हारे सिलेबस में थे नहीं आईपीसी से, बट इफ यू नो देयर इज समथिंग कॉल्ड यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेज ऑल्सो. यूसुफ्रैक्चरी मॉर्गेजेस जब हम लोन लेते हैं बट हम उस लोन को कभी रीपे नहीं करते. आई गिव माई एसेट इन रिटर्न, आई एम नॉट सेलिंग इट, आई गिव इट एज अ सिक्योरिटी, बट द अदर पर्सन इज अलाउड टू पुट माई एसेट टू यूज एंड रिकवर द लोन. लाइक इफ आई टेक अ लोन एंड आई गिव अ फ्लैट इन रिटर्न, सो दैट फ्लैट विल बी पुट ऑन रेंट. जब उसके रेंट से लोन विद इंटरेस्ट रीपे हो जाएगा ना, तो मेरा फ्लैट मेरे पास वापस आ जाएगा. सो इफ यू अंडरस्टैंड, देयर आर टाइप्स ऑफ मॉर्गेज जिसमें मुझे ओनरशिप भी ट्रांसफर करनी पड़ती है, एंड इफ यू डोंट अलाउ मी दैट, तो मेरा इन्वेस्टमेंट तो ब्लॉक फंड्स हो गए. सो दे सेड नहीं, उसके लिए भी अलाउड है. टू गिव इट एज अ सिक्योरिटी इट विल बी अलाउड. एंड लास्टली डीमैट फॉर्म के शेयर्स. इफ यू नो, डीमैट फॉर्म के शेयर्स तुम्हारे मेरे नाम पे नहीं होते यार, वो होते हैं डिपॉजिटरीज के नाम पे. तो कंपनी के भी शेयर्स विल बी इन द नेम ऑफ NSDL CDSL डिपॉजिटरीज, एंड यू कांट हेल्प इट, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म के शेयर्स है वो. सो दैट इज अगेन अलाउड. In these cases, companies' investments can be held in somebody else's name. Okay? And lastly, one thing, contravention. If a company contravenes the provision, 25,000 to 5 lakh on the company, and officer shall be punishable with imprisonment up to 6 months or fine 25,000 to 1 lakh or both. Makes sense? Okay? So now, till 187 you're done in this video. 188 onwards you'll do in the next one.